to thank you for this wonderful opportunity which you have given to us. And when we have come in your presence, Lord, that we can say that we love you, we adore you, we thank you, we worship you. Lord Jesus, we really thank you for this time. For Lord, you have given this opportunity to us which has not been given to millions in this world. It's just one in a million, Lord, who has been given this privilege to come in your court, to approach you in your presence. Oh Lord Jesus, to hear from you, to hear the words of life, to have the mind of Christ poured into their hearts. Oh God, I really thank you and I praise you that this is the day and the opportunity given to us, Lord. Few young men and people here, Lord Jesus, who have come here to climb that mountain to see and say that the slavery is over, it's finished, it's the rising of the sun. Oh God, we thank you and we praise your holy name. So come tonight, Lord, and open thy word to us and show us these steps through which Elijah went through in his journey for the rapture. Open these secrets to us, Lord, as we come here to meditate on your word. Be with the sick and the needy, heal our brothers and sisters, and heal the sick and the needy in this church, and give the needs of the needy according to your perfect will. Thank you, Father, for being with us. May your name be praised and glorified. Bless everyone who are connected with us by the way of the internet, Lord. Bless everyone who are in the hearing distance. May your name be praised. Let their needs be given to you, according to their perfect will. Thank you, Father, for hearing our prayer. As we commit ourselves into your hands of grace, in the name of Jesus Christ, Lord, we ask this prayer. Amen and amen. Abba, Father, let me be yours and yours alone. May my faith forever be evermore your own. Never let my heart grow cold.
never grow, Lord. Never let me go. Abba, Father, let me be yours and yours alone. Make my will forever be evermore your own. Oh, Abba, Fatherland. Just worship Him. Just submit yourself to Him tonight. Rededicate your lives. Just say, oh Lord, I hunger for you. Oh, I need you more than anything in my life. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, let my heart grow cold. Let me go, Abba, Father, let me be yours. Oh, hallelujah. Just yours and yours alone. Hallelujah. Oh, hallelujah. We praise you, Lord. We lift your name on high. We worship you, Lord. For you alone are worthy, Lord, to receive all glory and honor and power and mercies and riches and praise. May your name be praised, Father, for giving us grace to come to you in spirit and in truth, to worship you in spirit and in truth, Lord. Oh Lord, a rare combination which has come only in this age, when you have revealed the truth, the word of this age, and you have sent the Holy Spirit, Lord. Hallelujah. The fullness of the word and the fullness of the Holy Ghost have met together to bring the word made flesh in this hour. Oh, we thank you, Father, to come to that provided place, to stand in the provided place, Lord Jesus, where you have put your name, Lord Jesus. May your name be praised and glorified. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Oh, we worship you, Lord. We praise you, Lord. We hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Could we just call yours and yours alone? Oh, just yours and yours alone. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, just open up yourself to Him. Say thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let me be yours and yours alone. Oh, never let my heart grow cold. Never let me go. Abba, Father, let me be yours and yours alone. Just yours and yours alone. Just yours and yours alone. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Just yours and yours alone. Amen. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. What a time that God has given to us to praise Him. Just yours and yours alone.
That's right, Lord. That's right, Lord. That's what I crave for tonight. Be in your presence, Lord. Just a little more time. Some more time with you, Lord. To become perfect. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We're turning over to the book of Joshua. निकालते हैं यहोशू की पुस्तक In chapter 4, उसका चौथा अध्याय and we're reading from verse 19 onwards. और हम उसकी 19वीं आयत से पढ़ेंगे। And the people came up out of Jordan on the 10th day of the first month and encamped in Gilgal in the east border of Jericho. And those 12 stones which they took out of Jordan did Joshua pitch in Gilgal. And he spake unto the children of Israel, saying, when your children shall ask their fathers in time to come, saying, what mean these stones? Then ye shall let your children know, saying, Israel came over this Jordan on dry land. For the Lord your God dried up the waters of Jordan from before you until ye were passed over, as the Lord your God did to the Red Sea, which he dried up from before us until we were gone over, that all the people of the earth might know the hand of the Lord, that it is mighty, that ye might fear the Lord your God forever. Amen. Sweet Jesus, as we read your words Yes, Lord. and we are seeing the rapture of Elijah, Amen. give us grace to see these things, meditate on these things, and receive the words of life. Amen. In the name of Jesus Christ, we ask this prayer. Amen. Amen. You all can be seated. आप सब बैठ सकते हैं। Now tonight, we are going to continue on with this subject of the rapture of Elijah. अब आज रात्रि हम इसी विषय में आगे बढ़ेंगे, जो कि विषय है एलिया का स्वर्गारोहण। That's the main subject. ये मुख्य विषय है। We have read 2 Kings chapter 2, हमने दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय पढ़ लिया है and we have seen there are stations through which Elijah is going. और हमने देखा है कि 4 मुख्य स्थान है जिसमें होते हुए एलिया आगे बढ़ता है। And this journey of Elijah और ये यात्रा जो कि एलिया की है, follows his experience on Horeb. ये ठीक उस तजुर्बे के बाद होती है जो होरेब पे घटा। And you know, Horeb was where the seals were opened for Elijah. और आप जानते हैं कि होरेब वो जगह थी जहां पर एलिया नबी के लिए मोहरें खोल दी गईं। So when there was the opening of the word, तो जब वहां पर एक वचन का खुलासा हुआ, a rapture was on the way. एक रैप्चर पीछे पीछे उसके आ रहा था। And I want to show you something. और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। The path which Elijah took जिस मार्ग को, खास मार्ग को एलिया ने लिया, is a type and shadow for the church of this day, एक तस्वीर है और एक परछाई है इस दिन के लिए, आज की कलीसिया के लिए, which is not going to taste death, जो कि मृत्यु को नहीं चखेगी, but which will be caught up alive परंतु जीवित ही उठा ली जाएगी in the rapture. रैप्चर में। आमेन। Now, you know, rapture is consisting of some subunits. अब आप जानते हैं कि रैप्चर कुछ उप इकाइयों से बन के एक बनता है। The first unit is called justification, पहली इकाई तो धर्मी ठहरना है, then sanctification, और फिर पवित्रीकरण है, and then the baptism of the Holy Ghost. और फिर है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। And when you join it all together, और जब आप इन सबको इकट्ठा जोड़ देते Brother हैं, Branham said in token, भाई ब्रैनम ने टोकन में कहा, that's the complete unit for the rapture. ये है संपूर्ण इकाई उठाए जाने के लिए। So to have the unit for the rapture, तो उस इकाई को प्राप्त करने के लिए जो कि रैप्चर की है, you need 3 things together. आपको 3 चीजों की आवश्यकता इकट्ठा होती है। So when 3 things agree in one, तो जब 3 चीजें एक बात में सहमत होती हैं, that one is raptured. वो एक जो है उसका रैप्चर हो जाता है। That one goes to another dimension. वो एक जो है वो एक
दूसरा याम में चला जाता है। And we are going to see it tonight. और आज रात्रि हम इसे देखेंगे। The first step which he took was Gilgal. पहला जो कदम उसने लिया वो था गिलगाल का। And now we have seen, और अब हमने देखा है this is River Jordan. ये यरदन नदी है, It was parted ये फाड़ दी गई थी in the days of Joshua. यहोशू के दिनों में। And inside Jordan, और इस यरदन के बीचों बीच 12 stones were put. 12 पत्थर रखे गए And 12 stones were taken out. और इसमें से 12 पत्थर बाहर निकाले गए And they were pitched in this place, और वो इस स्थान पे स्थित किए गए which is called Gilgal. जिसको बोला जाता है गिलगाल। Now the old way of pitching stones was like this. अब जो पुराना तरीका इन पत्थरों को रखने का वो ये था, And if you can join it, और अगर आप इन पत्थरों को जोड़ें it forms a perfect pyramid. ये एक सिद्ध त्रिभुज बनाता है। So when the waters of Jordan came back, तो जब ये यरदन नदी के पानी जो है वापस लौटे, this pyramid got hidden. ये जो त्रिभुज है ये छुप गया And this pyramid could be seen. और ये जो त्रिभुज जो बाहर का है वो दिखाई दे, केवल देख रहा We था। have seen in this chapter, हमने इस अध्याय में देखा है these 12 stones which were taken out of Jordan ये 12 पत्थर जो कि यरदन नदी से बाहर निकाले गए, could be seen by every generation. ये हर एक पीढ़ी के द्वारा देखे जा सकते थे। And if the children asked the fathers, और अगर बच्चों ने पितरों से पूछा होता Daddy, what does this mean? कि पापा इसका मतलब क्या है, Then it will be said to them तो फिर उनको ये बताया जाएगा at Gilgal गिलगाल पर that this is the place कि ये वो स्थान है where River Jordan was parted, जहां पर यरदन नदी फाड़ दी गई थी, where the water stopped flowing. जहां पर पानी ने बहना रोक दिया था। Now, as I was explaining to you yesterday, अब जैसे कि मैं आपको समझा रहा था कल, try to understand it. इस बात को समझने की कोशिश करिए। How did the waters of Jordan get parted? जो यरदन नदी के पानी है वो कैसे फटे? It did not open like this. ये ऐसे नहीं एकदम बीचों बीच खुल गए। Red Sea opened like this. लाल समुंदर तो ऐसे खुला And on both sides there were heaps of water. और दोनों तरफ पानियों की एक दीवार बन गई थी। Is that right? क्या ये बात ठीक है? But when you see Jordan, पर जब आप यरदन नदी को देखते हैं, Jordan didn't part like that. यरदन नदी ऐसे नहीं फटी। You know the direction of water in a river is unidirectional. जब आप पाते हैं तो पानी का जो भाव होता है एक नदी में एक ही दिशा में आगे बढ़ता है। It comes from the higher side to the lower side. ये ऊंचाई के स्थान से निचले स्थान पे बहता है। And so if you see the geography, तो अगर आप भूगोलिक अवस्था को वहां की देखें, it was coming from an upper coast वो एक ऊपरी इलाके से आ रहा था and flowing towards the Dead Sea. और मृतक सागर की ओर बह रहा था। So what happened actually? तो वास्तविकता में क्या हुआ? God stopped the waters at a point. खुदावन ने पानी को एक स्थिति पे आके रोक दिया And the waters were coming on. और पानी तो लगातार आता जा रहा था, But it was stopped at a point. पर वो एक जगह पे रोक दिया गया था। So the water became a huge wall तो फिर एक पानी जो ये पानी है ये एक बहुत ऊंची दीवार बन गया on one side. एक तरफ, And the waters on this side, और जो पानी इस तरफ था it kept on flowing. वो बहता चला गया। So if you can see it, तो अगर आप इसको देखेंगे, when the waters were flowing, जब पानी बह रहे थे, the waters flowed out पानी बह गया पूरा and the earth was opened like a scroll. आमेन। और जो भूमि है एक लपेटे हुए पत्र की मानिंद खुलती चली गई। If you open it like this, अगर आप इसको खोलते हैं, on one side there's a heap, एक तरफ तो एक पूरा है झट्ठा है, but on the other side it's an open paper. पर दूसरी तरफ ये खुला कागज की मानिंद है। It is in this fashion इस तरीके से that the river Jordan was opened up. ये यरदन नदी फाड़ी गई थी। If you can see it here, अगर आप इसको यहाँ देखें, this is the heap ये बड़ा जट्ठा है पानी and the का waters are flowing out here. और पानी वहां पर दूसरी तरफ बहता चला जा रहा This है। can be understood as the scroll इसको एक लपेटे पत्र की मानिंद समझा जा सकता है and the rest part is opened up. और बाकी का हिस्सा खुलता चला जा रहा है। So opening of Jordan was like opening a scroll. तो यरदन का खुलना एक लपेटे पत्र के खुलने के समान था। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? And the whole scroll was opened up. और पूरा लपेटा पत्र खोल दिया गया। And when the scroll was opened up, और जब ये लपेटा पत्र खोल दिया गया, the children of Israel walked through the open scroll. आमीन। जो इज़राइल के बच्चे हैं वो इस लपेटे पत्र में से होके चल के आगे बढ़ गए। They received an entrance through the opening. उन्हें एक प्रवेश मिला इस खुलासे के द्वारा।
And when that opening took place, और जब एक खुलासा घटा 12 stones were taken out. 12 पत्थर निकाल दिए गए बाहर। In other words, 12 stones were inside the sealed scroll. इसका मतलब ये है कि 12 पत्थर इस मोहर बंदित लपेटे हुए पत्र में पाए जाते थे। They were taken out. वो बाहर निकाले गए। It has another type. इसकी एक और तस्वीर है, Because Jordan means death. क्योंकि यरदन का मतलब मृत्यु है। And those 12 stones represented the 12 tribes of the children of Israel. और वो जो 12 पत्थर हैं वो दर्शाते हैं 12 गोत्रों को जो कि इजराइल के हैं। And today we are the spiritual Israel. और आज हम वो आत्मिक इजराइल हैं। So those 12 stones would be representing us also. तो फिर वो 12 पत्थर हमें भी दर्शाएंगे। And Jordan means death. और यरदन का मतलब मृत्यु है। You and I were taken out of death. मैं और आप मृत्यु से बाहर निकाले गए। And your and my place was taken in death by Jesus Christ. और आपकी और मेरा स्थान जो मृत्यु में था वो मसीह यीशु के द्वारा ले लिया गया। Can you say amen? क्या आप आमीन बोल सकते हैं? So the same place where the stones were taken out, तो जिस ठीक स्थान से जहां पर पत्थर निकाले गए थे 12 other stones were placed. 12 दूसरे पत्थर लगा दिए गए। And you find that the two heaps looked alike. और आप पाते हैं जो दो जो ढेर थे पत्थर के वो दोनों समान दिखते थे। So they were alike, one in Jordan, one out of Jordan. एक बिल्कुल समान थे, एक यरदन के अंदर और एक यरदन से बाहर। And if you can see this one which was in Jordan, और अगर आप इसको देखें जो यरदन में था, which took our place, जिसने हमारे स्थान को लिया, is the Lord Jesus Christ, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, who is our bridegroom. जो हमारे दुल्हा हैं। And we और हम who are taken out जो कि बाहर निकाले गए थे represent the bride. दुल्हन को दर्शाते हैं। People on this earth today लोग जो कि आज इस पृथ्वी पे हैं can see the bride, दुल्हन को देख सकते हैं, but the bridegroom is hidden. परंतु दुल्हा तो छुपा हुआ है। And we are going to see it, he's hidden for a space of time. और हम इसको देखेंगे कि वो एक समय के थोड़े टुकड़े के लिए छुपा हुआ है। Now we are seeing another type. अब हम एक और तस्वीर देख रहे हैं। Since the days of Joshua, यहोशू के दिनों से, which Joshua is Ephesians, जो कि यहोशू इफ्सियों को दर्शाता है, till the days of Elijah, एलिया के दिनों तक which के, Elijah represents Laodicea, जो एलिया दर्शाता है लौदीकिया को, which Elijah represents the bride age, एलिया दर्शाता है दुल्हन के युग को, a church which will never see death. एक ऐसी कलीसिया जो कभी मृत्यु को नहीं देखेगी। 7 church ages transpired. 7 कलीसिया काल गुजर गए इस समय में। And I want to show you something. और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कुछ। When Elijah was raptured, जब एलिया का रैप्चर हुआ, the last thing he done, पहली चीज आखिरी चीज जो उसने करी, he smote the waters of Jordan. उसने यरदन के पानी पे मारा। And when he smote the water of Jordan, और जब उसने यरदन के पानी पे मारा, Jordan was parted. यरदन फट गई। And when Jordan was parted, और जब यरदन फट गई, actually, वास्तविकता में these 12 stones which were hidden in the days of Joshua, ये 12 पत्थर जो कि छुप गए थे, छुपा दिए गए थे यहोशू के दिनों में, they got unveiled. ये बेपर्दा हो गए। Jesus Christ came 2000 years back, यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, but went behind the veil. पर पर्दे के पीछे चले गए। But in this age, पर इस युग में that same Jesus Christ वही यीशु मसीह was unveiled फिर से बेपर्दा हुआ and came in plain view. और साफ दृश्य में आ गया। And when he came in plain view, और जब वो स्पष्ट दृश्य में आया, Elisha and Elijah couldn't see एलिया और एलीशा देख पाए that this heap and this heap just looked alike. आमीन, कि ये वाला पत्थर का ढेर और वो वाला पत्थर का ढेर बिल्कुल एक समान दिखते हैं। The bride and the bridegroom are just the same. दूल्हा और दुल्हन बिल्कुल ठीक एक समान है। When they came to that revelation, जब वो इस प्रकाशन तक आए that this is in the measure and stature of a perfect man, कि ये बिल्कुल ठीक उसी नाप में और ढील डोल में है जो कि एक सिद्ध मनुष्य का है, it is at that time ये वो समय था that Elijah crossed Jordan. कि एलिया ने यरदन को पार किया। And that is when Elijah got raptured. और ये वो समय था जब एलिया का स्वर्गारोहण हुआ। Just before the rapture, ठीक रैप्चर से पहले Elijah caught a glimpse of Christ, एलिया को एक झलक मिली मसीह की, which was veiled since the days of Joshua. जो कि यहोशू के दिनों से पर्दे के पीछे थी। But in this age, और इस युग में it was parted. वो फाड़ दी गई, It was opened. वो खोल दी गई। Once again, एक बार फिर से after 2000 years, 2000 साल के बाद it came in plain view. ये स्पष्ट दृश्य में आ गई। Can you say amen? क्या आप आमीन बोल सकते हैं? We are going to come to that revelation a little later. हम उस प्रकाशन पे थोड़े समय बाद आएंगे, But we are going to see Gilgal first. पर पहले हम गिलगाल को देखेंगे।
when Elijah started with Elisha from Gilgal, जब एलिया शुरू किया एलिया ने एलीशा के साथ गिलगाल से, the very point where he started, ठीक जिस बिंदु पे उसने शुरुआत करी, now may spiritual revelation strike your soul. काश आत्मिक प्रकाशन आपके प्राणों को छुए। The minute he took Elijah took Elisha to Gilgal, जिस क्षण एलिया ने एलीशा को गिलगाल लेके गया, they realized उन्होंने ये बात समझी that there is a heap of stones there. कि वहां पर तो एक पत्थर का ढेर रखा है। He started his journey from this heap उसने अपनी यात्रा इस पत्थर के ढेर से शुरू करी and finished at this heap. और इस जो कि यरदन के अंदर का ढेर था उसके साथ समाप्त करी। Gilgal, Bethel, Jericho, Jordan is moving from this heap to this heap. गिलगाल, बेतेल, यरीहो, यरदन, ये है इस ढेर से उठ के दूसरे ढेर तक आना। Going out from church ages to another age. कलीसिया कालों में से निकल के एक और युग में जाना। The age of the Son of Man. मनुष्य के पुत्र का युग। When the Son of Man is revealed. जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होता है। And when the Son of Man is revealed. और जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होता that है। gives a rapturing faith. ये देता है स्वर्गारोहण वाला विश्वास। That takes the bride home. जो कि दुल्हन को वापस घर ले जाता है। Can you say amen? क्या आप आमीन बोल सकते हैं? Amen. So when he starts from Gilgal, तो जब वो गिलगाल से शुरू करता है, they start from this heap, वो इस पत्थर के ढेर से शुरू करते हैं, which represents the bride. जो कि दुल्हन को दर्शाता है। And this is the matching piece. और ये उसका मैच करने वाला टुकड़ा है। And the time they are joined together, और जिस क्षण वो एक साथ जुड़ते हैं, at that particular time, उस खास समय पे, this and this, when it becomes one, जब ये और ये एक हो जाते हैं, it हालेलुया, makes the Star of David. ये दाऊद का सितारा बना देता है। It's time for Israel. ये इज़राइल का समय है अब। When the marriage of the Lamb takes place, जब मेमने का ब्याह घटता है, the 6-point Star of David comes back. वो 6 कोने वाला सितारा वापस लौटता है दाऊद का। The union of two triangles. 2 त्रिभुजों का मिलन। Can you say amen? क्या आप आमीन बोल सकते हैं? We are living in that time. हम उस समय में रह रहे हैं। Amen. Now try to catch it. अब इसे पकड़ने की कोशिश करिए। We are going to go step by step, हम कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे and we are going to see what's happening here. और हम देखेंगे यहाँ पर क्या घट रहा है। The first place was Gilgal. पहली जगह तो गिलगाल थी। Now we are going to see what all happened at Gilgal. अब हम देखेंगे क्या कुछ घटा गिलगाल पर। The first station, पहला स्थान, which would mean that would be happening to the church, spiritual. इसका मतलब ये होगा कि जो कुछ वहां घटा वो आत्मिक कलीसिया के साथ घटेगा। Preparing her for the rapture. तैयार करेगा उसे रैप्चर के लिए। Now it says that they encamped in Gilgal, अब वो ये कहता है कि उन्होंने छावनी डाली गिलगाल में, the east border of Jericho. जो कि पूर्वी सिवाना था यरीहो का। And those 12 stones which they took out of Jordan did Joshua pitch in Gilgal. और वे 12 पत्थर जो कि यहोशू ने यरदन से बाहर निकाले थे उन्होंने गिलगाल में रख दिए। Now that whole thing happened. अब ये सब चीज घट गई। Now come to chapter 5. अब 5वें अध्याय पे आइए। When they were living in Gilgal, जब वो गिलगाल में रह रहे थे, something else took place. कुछ और चीज घटी। And I request my brother to read from verse 1 of chapter 5. और मैं आग्रह करूंगा मेरे भाई से कि पहले ऐसे पढ़े 5वें अध्याय की। जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने ये सुना कि यहोवा ने इजराइलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सुखा रखा है, तब इजराइलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इजराइलियों का खतना करा दे। कई बार we don't understand the miracle. हम आश्चर्य कर्म को बहुतेरी दफा नहीं समझ पाते, Because our river Yamuna is just like a small, what should I call, a rivulet. अगर आप देखें तो हमारा यमुना नदी जो है एक छोटे सुएं या छोटी नदी की मानिंद है, Which today you can even cross without getting drowned. जिसको आप बिना डूबे आराम से पार कर सकते हैं। But I want to tell you, when I came to Delhi in 1976, पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब मैं दिल्ली में आया 1976 में, at that time, if you could see Yamuna, उस समय अगर आप यमुना नदी को देखते, there would be a sense of fear in you. आप में एक घबराहट आएगी, Because this old iron bridge क्योंकि ये पुराना जो लोहे का पुल था that connects
Red Fort to the Trans-Jamuna area. जो कि पुराने जो कि लाल किले के स्थान को जमुना पार वाले इलाके से जोड़ता है. The level of the water was just below the road. जो पानी का जो स्तर था वो ठीक बिल्कुल रोड से थोड़ा सा ही नीचे था. That is true. ये बात बिल्कुल सच्ची है. And if you saw, there was no dry land. और वहां पर कोई सूखी भूमि थी नहीं. If you saw such a river, अगर आप ऐसी नदी को देखें, you would understand if somebody goes in that river, nobody would be finding him. कि आप ये बात समझ जाएंगे कि अगर कोई शख्स ऐसी नदी में जाए, कोई उसका अता पता चल नहीं पाएगा. Very huge river. बहुत बड़ी नदी. In the same way, Jordan was a huge river. उसी रीति से यर्दन एक बहुत बड़ी नदी थी. And brother, when the people of the Amorites heard it, और आप पाएंगे भाई, जबकि ये अमोरी लोगों ने इसको सुना, such a huge river just opened like a scroll. इतनी बड़ी नदी एक लपेटे पत्र की मानिंद खुल गई. Their hearts melted. उनके हृदय पिघल गए. They could sense वो ये बात भाप पाए there's something other than them. कि इन लोगों के अलावा भी कुछ और है. There is something supernatural with them कुछ अलौकिक इनके साथ है that goes with them. जो कि इनके साथ चलता है. Their God is more powerful उनका खुदा ज्यादा शक्तिशाली है. than what Amen. we worship. ठीक उससे जो कुछ हम उपासना में करते हैं. Their God is a very powerful God. उनका खुदा बहुत सर्व सामर्थी है. And it is not possible to fight their God. और ये कोई संभव नहीं है कि हम उनके खुदा से युद्ध लड़ पाएं. Already stories were coming in their ears. पहले से बहुत सारी कहानियां उनके कानों में पड़ चुकी थी. How Red Sea was parted. कैसे लाल समुंदर फाड़ दिया गया था. And now River Jordan is parted. और अब ये यर्दन नदी भी फाड़ दी गई है. They understood वो समझ गए that they can't meet any resistance. कि वो कोई भी अवरोध को झेल नहीं पाएंगे. Now just think of the situation. अब इस हालात को देखिए. The 10 spies and the rest of the Israelites, जो 10 जो भेदिए थे और बाकी के इजरायली लोग, they were afraid of these Amorites and Amalekites. वो तो इन अमोरी और अमेलेकियों से डर रहे थे. But the real situation is पर वास्तविक स्थिति तो ये थी, the Amorites and the Amalekites are afraid of these people. ये अमोरी और अमलेकी इन लोगों से डर रहे हैं. Amen. The real fact is वास्तविक बात ये है, devil is afraid of us. शैतान हमसे डरता है. Amen. Amen. He that is in us वो जो हम में है is greater than he that is in the world. वो उससे बढ़कर है जो इस संसार में पाया जाता है. And if you have that he in your life, और अगर आपके पास वो आपके जीवन में पाया जाता oh, है, he's the he-man. वो तो ही मैन है. And he's such a strong he-man और वो इतना बलिष्ठ शक्तिशाली ही मैन है that no devil can stand before him. कि कोई शैतान कोई दुष्ट आत्मा उसके सामने खड़ी नहीं रह सकती. Already the stories are coming पहले से कहानियां सुनाई जा रही हैं of the mighty works that Jehovah has done in their life. उस महान कार्यों के बारे में जो कि यहोवा ने उनके जीवनों में किया है. Their hearts are melting. उनके हृदय पिघल रहे हैं. The battle has not started, युद्ध तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, but they have started fear. पर तब भी पहले से उनके मनों में डर बैठ गया है. They have a complex in them उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ गया है that if Jordan is parted, कि अगर यर्दन फट गई, how can our spears and our swords win against them? कि कैसे हमारे भाले और हमारी तलवारें उनके विरोध में लड़ पाएंगी, They जीत have पाएंगी. something more powerful than that. उनके पास कुछ इन सब चीजों से ज्यादा बढ़कर है, They just शक्तिशाली. speak and it happens. वो केवल बोलते हैं और हो जाता है. Amen. They have a hidden power. उनके पास एक छुपी हुई शक्ति है. They have some potentials उनके पास कुछ क्षमताएं हैं which we don't realize. जो कि हम नहीं समझ पाते. Amen. They vanish वो गायब हो जाते हैं and we don't know it. और हमें नहीं पता चलता. Amen. Our own people turn against us हमारे लोग हमारे विरोध में हो जाते हैं and start taking their side. और उनकी जगह उनके साथ हो जाते हैं. Rahab, for example. उदाहरण के तौर पर राहाब. And I want to tell you, brother, और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, even before the conquest begins, इससे पहले कि युद्ध संग्राम शुरू हो, even before you start possessing the land, ठीक इससे पहले यहाँ तक कि आप भूमि पे कब्जा करें, those who are already living in the land know that days are few. जो इस भूमि में रहते हैं वो खुद जानते हैं कि अब उनके दिन कम हो गए हैं, नब गए हैं. These grapes don't belong to us now. ये अंगूर के मजे अब हम
नहीं ले पाएंगे। These pomegranates are not for us now. ये अनार अब हमारे लिए नहीं रहेंगे। These evidences don't belong to Amen. us. ये प्रमाण हमारे नहीं है। They belong to another super race. ये एक और सर्वोच्च जाति के हैं। A race which is led by a prophet. एक ऐसी जाति जो कि नबी के द्वारा अगुवाई प्राप्त Led करती by the है। pillar of fire. आग के खंबे के द्वारा अगुवाई प्राप्त करती Led by है। the pillar of cloud. अब बादल के खंबे के द्वारा अगुवाई प्राप्त करती है। Have some mysterious thing. ओ कुछ रहस्यमय चीज है। How many saw the 10 commandments? कितनों ने 10 हुक्म 10 कमांडमेंट्स वाली मूवी देखी है? Most of you have. बहुत अधिकांश लोगों ने देखी है। If you saw the night of the Passover, अगर आपने वो पास ओवर की रात को देखा हो, when Joshua is applying blood, जब यहोशू लहू को लगा रहा है, and after some time, कुछ समय के बाद you see the king's palace, आप देखते हैं राजा का महल, and the king is saying, we are ready to strike all these Israelites. और राजा कहता है कि हम तैयार हैं कि इन तमाम इजरायलियों के ऊपर आक्रमण करें। But suddenly on the ground, पर अचानक से धीरे धीरे there's a green mist moving, एक हरा हरा धुआं सा आगे बढ़ रहा है, and the people are afraid. और लोग घबरा रहे हैं, And the people look at it and say, और लोग उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं some devil's curse. कुछ शैतानी श्राप है। What kind of a thing is this? किस किस्म की चीज ये है? They were not even able to say it. यहाँ तक कि वो इस बात को कह भी नहीं पाए थे। The chief soldier died. जो मुख्य सेनापति था वो मर गया। And then Ramses said, और फिर रैमसेस ने कहा, he was your firstborn? ये तुम्हारा पहलौठा था? Of course, he was the firstborn. हाँ बेशक ये मेरा पहलौठा था। Death struck Egyptians. मौत ने कब्जे में ले लिया उन तमाम मिस्रियों को। Now you can't fight that mist with swords and spears. अब आप भाले और तमाम तलवारों से इस हरी धुएं से लड़ नहीं सकते। Moves like this. वो ऐसे ऐसे चलता है। If you see, it was came down like this. अगर आपने देखा वो ऐसे आया नीचे, And it was moving from house to house. और वो घर के अंदर से होते हुए घरों में घुस रहा था। Brother, you can't fight a God. भाई आप एक खुदा से लड़ नहीं सकते। And I want to tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, thank God we are Israel. खुदा का धन्यवाद हम इज़राइल हैं। Thank God for the blood. धन्यवाद हो लहू के लिए। Thank God for the token. धन्यवाद हो उस चिन्ह के लिए That we are under that token. कि हम उस चिन्ह के तहत हैं। Death passed over. मौत हम पे हमारे ऊपर से लंघ गई। But it was not very grateful. I mean, the angel of death was not very merciful for the next house. पर जो मौत का फरिश्ता था वो बहुत करुणामय नहीं था अगले घर के लिए। Because you could hear the wails and cries in that house. क्योंकि आप रोना और चिल्लाना बगल के घर में सुन पाते थे। Some devil's curse. कोई शैतानी श्राप है, But nobody could fight it. पर कोई इसे लड़ नहीं सकता। How those magicians said, कैसे उन जादूगरों ने कहा and doctors said, और उन तमाम वैद्यों ने कहा, nothing can work, sir. Nothing works. श्रीमान कुछ कर चल नहीं रहा, कुछ कोई चीज लग No नहीं trick, रही। no magic trick works against this. कोई भी चाल, कोई भी जादुई मंत्र इसके विरोध में चलता नहीं है। Slowly, Ramses was now realizing धीरे धीरे अब रैमसेस ये समझ रहा था, their God is more powerful. इनका खुदा ज्यादा महान है। The God of Hebrew slaves इन इब्रानी गुलामों का खुदा was more powerful than any Egyptian God. है कि वो ज्यादा शक्तिशाली था किसी भी मिस्री देवता से। And in the olden times, और पुराने समयों में before there was a fight between kings, इससे पहले कोई लड़ाई होती थी राजाओं के बीच में, it was a fight between the gods. एक लड़ाई होती थी उनके देवताओं के बीच में। They used to first see वो पहले ये देखते थे whose God is greater. किसका खुदा ज्यादा महान है। And I want to tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, even before the battle began, ठीक इससे पहले यहाँ तक कि लड़ाई शुरू हो पाती, the Amorites realized, अमोरियों ने जान लिया, the Amalekites realized, अमालेकियों ने जान लिया their God is greater. कि उनका खुदा हमारे महान है। We can't match that God. हम कुछ बेचते नहीं उन खुदा के सामने। Every hurdle is opening. हर एक जो बाधा है वो उनके सामने खुलती चली जा रही है। A door is opening. एक द्वार खुलता चला जा रहा Now है। they are just in your backyard. अब तो वो हमारे ठीक पीछे वाले हिस्से में आंगन में आ गए हैं। Oh my, what should we do? ओह, अब हम क्या करें? The kings of the Amorites are in a problem. जो अमोरी के राजा हैं वो बड़ी समस्या में पड़ गए हैं। Let me tell you tonight. ऐसा होने पाए कि आज रात्रि I'm में आपको saying, बताऊं, let me tell you tonight. आज रात्रि में आपको बताना चाहता हूं, The kings of the Amorites are afraid of you. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अमोरियों का राजा आपसे डरता है। Can I say something? क्या मैं कुछ कह सकता हूं? Don't be afraid of death.
मौत से मत डरिए, Death is afraid of you. मौत आपसे डरती है। Amen. You have a God आपके पास एक ऐसा खुदा है whose word is so powerful, जिसका वचन इतना ज्यादा शक्तिशाली more है, powerful than death. मृत्यु से ज्यादा शक्तिशाली And है। if that word lives in your heart, और अगर वो वचन आपके अंदर रहता, आपके you हृदय will में even रहता है, defeat death. तो आप मृत्यु को हरा देंगे। You don't have to taste death. आपको मौत चखनी नहीं पड़ेगी And you will be caught up alive और आप जीवित बदल जाएंगे in the rapture. रैप्चर में। Amen. Hallelujah. Already the stories were coming, पहले से कहानियां आ रही थी, one after the other. एक के बाद एक। There were messengers telling the kings, कुछ दूत थे जो कि राजाओं को बता रहे थे, today this happened. आज तो ये हो गया। Rahab was also hearing such stories, राहाब भी ऐसी कहानियों को सुन रही थी, but her heart was not melting. पर उसका हृदय पिघल नहीं रहा था। She was waiting to become a bride. वो तो तैयारी कर रही थी एक दुल्हन बनने की। She was waiting for an association. वो एक संबंध बनाने के लिए इंतजार कर रही थी। Enough with Jericho. यरीहो के लिए बहुत हुआ, I'm now moving on another camp. अब मैं एक दूसरी छावनी में प्रवेश करूंगी। But the rest of the people, पर बाकी के लोग, they were afraid. वो घबरा रहे थे, They was doing enchantments, nothing was वो happening. मंत्र पढ़ रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। They must have prayed to their gods. उन्होंने अपने देवताओं से प्रार्थना करी होगी, Do something, send these people away. कुछ तो करो, इन लोगों को पीछे भेज दो। But the more they prayed, पर जितना ज्यादा उन्होंने प्रार्थना की, the more a miracle took place. उससे कहीं बढ़कर एक आश्चर्य क्रम घट जाता था। Now they realized अब उन्हें समझ में आ गया, we are just left to ourselves. हम अपने आप अपने हाल पे छोड़ दिए गए Our हैं। gods are nothing but wood and stones. हमारे देवता कुछ नहीं, पत्थर और काठ हैं, Nothing can happen from them. कुछ उनसे फायदा नहीं होता। But He is God, that is God of Israel. पर वो खुदा है जो कि इज़राइल का है। Oh, He is हालेलुया, powerful. ओ वो शक्तिशाली Oh, है, He is mighty. ओ वो महान है, There's nobody like Him. कोई उसके समान नहीं है। Brother, भाई, when our God thunders, जब हमारा खुदा गरजता है, the foundations of the earth are discovered. जो पृथ्वी की नींवें हैं वो हिल जाती हैं, उनका I पता want to लग जाता tell you, है। brother, मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, what is that place called? उस स्थान को क्या कहते हैं? The deepest place in the Pacific. प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान, Marinas, friend. मरीना। Challenger's Deep, there's another name for that. Mariana's Trench, eh? Mariana's Trench. When God thunders, मरियाना स्ट्रेंच, जब खुदा गरजता है, the waters get parted till the base. जो पानी है वो हिल जाते हैं, हट जाते हैं बिल्कुल तलहटी तक के। Even the underwater earth has a T-phase activity. यहाँ तक कि जो पानी जो नीचे जमीन में है उसमें भी एक कंपन हो जाती है, उसमें भी भूचाल आ जाता है, Tsunamis begin. सुनामी चालू हो जाते हैं। Why? क्यों? The lion has roared. सिंह गरजा है। When the lion of the tribe of Judah roars, जब यहूदा के गोत्र का सिंह गरजता है, the whole earth trembles. पूरी पृथ्वी कांपती है। All doubts have to flee. हर एक शक को भागना पड़ेगा। But I want to tell you, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, the lion's family gets up. जो उस शेर का परिवार है वो खड़ा होता है। Hallelujah. हालेलुया। They know our dad, they know our Lord is thundering. वो जानते हैं हमारा पापा, हमारा प्रभु अब गरज रहा है, And the whole earth has to keep quiet. और पूरी दुनिया को चुप होना जरूरी है। That's why Amos said, इसलिए आमोस ने कहा, the lion has roared. सिंह गरजा है, Who can stop from prophesying? नबूवत करने से कौन रोक सकता है? Oh my, ओ माय आमेन। that is our God. ये है हमारा खुदा, A God who works impossible, एक ऐसा खुदा जो असंभव को कार्यान्वित करके who दिखाता है, changes the day, जो कि दिन को पलट who देता है, changes the situation, जो कि मौके पे हालात who को बदल changes the देता है, circumstances. जो कि हालात परिस्थितियों को He बिल्कुल can do विपरीत कर देता है, वो कुछ भी कर सकता है, He can change situations. वो हालातों को बदल सकता He है, can change circumstances. वो परिस्थितियों को विपरीत कर सकता He है, can bring down kings.
kings. वो राजा को गिरा सकता And he can है, lift up other kings. वो दूसरे राजा को उठा सकता है, He can do anything. वो कुछ भी कर सकता है। Oh, he's a very powerful God. ओ वो एक बहुत ही शक्तिशाली खुदा है। Oh, brother, we need to just worship him. ओ भाई, हमें केवल उसकी उपासना करने की जरूरत We है। need to acknowledge हमें उन सब चीजों को Acknowledge मानना his है, greatness. उसकी महानता को स्वीकार करना है, acknowledge how great he is. इस बात का गुणानुवाद करना है कि कितना महान वो है। Not just say G-R-E-A-T. केवल ये ना बोले GREAT कि वो महान Don't है, say just that word. केवल इस शब्द को ना बोले, Recognize पहचाने Amen. how great our Lord is. कितना महान हमारा खुदा है, How great is his majesty. कितनी महिमता उस खुदा की है। Brother, भाई, if his eyes become twisted, अगर उसकी आंख टेढ़ी हो जाए, brother, the earth will be no more. भाई पृथ्वी वजूद में होगी नहीं। I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, this earth is a small pinball. ये जो पृथ्वी एक छोटी गेंद की मानिंद है, Like that, God has many such pinballs, ऐसे खुदा के पास बहुत सारे पिन बॉल हैं which makes a galaxy. जो कि ये गैलेक्सी को बनाती है, Then the galaxies make a universe. और फिर जो गैलेक्सी है वो पूरे ब्रह्मांड को बनाती है, And still beyond that, और ठीक इससे भी आगे there is a God. एक खुदा है। Amen. And just think, सोच के देखिए, that great God वो महान खुदा is in relation with us. वो हमारे साथ एक संबंध में है। हालेलुया। Then, brother, what do we need to do? तो भाई फिर हमें क्या करने की जरूरत है? Let us understand आइए हम समझें the battle is already won. कि युद्ध पहले से जीता जा चुका है। Let us understand आइए समझें the circumstances and situations are in our favor. जो परिस्थिति और हालात हैं वो हमारी ओर है। Our prayers are answered. हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। The Bible says, oh, taste and see. बाइबल कहती है, ओ चख के देखो, He's like honey in the rock. वो चट्टान में मधु के समान मीठा Oh, है। he's so sweet, वो इतना मीठा है, yet तो भी so terrible. इतना ज्यादा भयंकर भी है। A consuming fire. एक भस्म करने वाली आग भी That when है he starts destroying, कि जब वो बर्बाद करना शुरू करता just है, a small hand, एक छोटा सा ही हाथ का फेरना, and more than lakhs people die. और लाखों से ज्यादा की संख्या में लोग मर जाते हैं। इबादतें भी थक जाएंगी. यस इबादतें भी थक जाएंगी. यस। When you can see these mountains melting, जब आप देखते हैं इन पहाड़ों को टूटते हुए, लाश पे लाश गिरेगी, यस, और तब पूजा करो केदारनाथ की, तब पूजा करो अमरनाथ की, जब अमरनाथ ही तुम पे गिर पड़ेगा. I want to tell you, brother, मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, their gods can't do anything, इनके देवता कुछ कर नहीं सकते, but we, परंतु हम Mount Zion, सिय्योन पर्वत, the city of God, खुदा का नगर, have a living God. हमारा एक जीवता खुदा है। Always be conscious of this, हमेशा इस बात के लिए जागरूक रहिए that the kind of God we serve कि जिस किस्म के खुदा की हम सेवा करते हैं is God, वो ही खुदा है, and there is none else. और उसके अलावा कोई और है नहीं। Amen. That is true. ये बात सत्य है। इबादतें भी थक जाएंगी, इबादतें भी थक जाएंगी, शेर शायरी भी थक जाएगी, Yes. जब खुदा का गजब इन लोगों पे पड़ेगा. That's true. Nobody can stop it. कोई उन्हें बचा नहीं पाए, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। When the natural disaster strikes, जब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आगे बढ़ती हैं, when God starts moving, जब खुदा अपने काम में चालू करता है, when nature starts twisting, जब प्रकृति उलट पुलट होने लगती है, brother, it's a dangerous time. भाई ये एक बहुत ही खतरनाक समय है। So I want to tell you, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ but God keeps his children safe. कि खुदावन अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है। Many years back, बहुत साल पहले when tsunami struck Andhra Pradesh, जब सुनामी आंध्र प्रदेश में आया, everything got drowned. People died in lakhs. हर एक चीज डूब गई, लोग लाखों की संख्या में मारे गए, But there was a little pastor there. पर वहां पर
एक छोटा पास्टर भाई था who was reading Bible in his house. जो कि अपने घर में बाइबल पढ़ रहा था, And with his Bible he came out. और अपनी बाइबल के साथ वो बाहर आया। At that instant, ठीक उस क्षण पे the tsunami came to him. सुनामी उसके पास आया, But the wave just lifted him पर जो लहर थी ठीक उसने केवल उसको उठाया ही and put him on the roof. और उसको छत पे बिठा दिया, And he was just reading his Bible. और वो अपनी बाइबल पढ़ रहा था, And the waters passed away. और पानी गुजर के चले गए, And the pastor remained alive. और जो पास्टर है वो जीवित बचा रहा। His church was not destroyed. उसका चर्च बर्बाद नहीं हुआ। God keeps his children safe. खुदा अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है। I want to tell you, brother, sister, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई मेरी that बहन, is why through Balaam God said, इसलिए बलाम के द्वारा खुदावंद ने कहा, there is no enchantment against Jacob. याकूब के विरोध में कोई मंत्र चलता नहीं है। Nothing works against Jacob. याकूब के विरोध में कुछ नहीं चलता। He is God, वो तो खुदा है who is the God of Jacob, जो कि याकूब का खुदा है, God of Abraham. इब्राहिम का खुदा है, He is our God. वो हमारा खुदा है। Oh, he reigns from everlasting to everlasting. ओ वो राज करता है युगान युग से युगान युग तक। Thou art God, तू आप खुदावंद हैं and there is none else. और आपके अलावा कोई और है नहीं। Oh, these words are eternal. ओ ये वचन अनंत है। आमीन। So I want to tell you individually, तो मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे बताना when चाहता you move हूँ, out of this door tonight, जब आज रात्रि आप इस दरवाजे से बाहर जाएं, be conscious of this fact. इस बात के लिए जागरूक हो Your Amorite enemy is afraid. कि आपका अमोरी दुश्मन घबरा रहा है, Their hearts are melting. उनके हृदय पिघल रहे हैं। They know defeat is on every side. वो जानते हैं जो हार है वो हर दिशा में है, But victory is on your side. पर जीत आपकी तरफ है। V-Day, V-Day. वीडे वीडे हालेलुया। My. Now. अब Oh my, I can already see the crowd in a rapture. ओ मैं पहले से भीड़ को एक रैप्चर में देख पाता हूँ। I can see a rapture here. मैं एक रैप्चर यहाँ देख पाता हूँ। Amen. आमीन। You can see a rapture in your soul. आप एक रैप्चर को अपने प्राणों में The देख पाते grapes of हैं। Canaan. वो कनान के अंगूर, Oh, the intoxication is strong. ओ उसकी मदहोशी बहुत ज्यादा Oh, तीव्र है। hallelujah. हालेलुया। Salem. सलेम, Shalom. शलोम, Jerusalem. यरूशलेम, The God of Israel. इज़राइल का खुदा He is here. वो यहाँ पर है। Are you conscious of that? क्या आप इस बात के लिए जागरूक हैं? Mr. Asaf? श्रीमान आसाफ, Are you conscious of that? House of Aaron? है हारून के घराने, क्या तू इस बात के लिए जागरूक है? Oh, house of Levi? ओ लेवी के घराने, Are you conscious of this fact? क्या तू इस बात के लिए जागरूक है Your God has won the victory. कि तेरे खुदा ने उस जीत को हासिल किया है? Victory means victory. जीत का मतलब जीत है, There's no defeat then. फिर कोई हार नहीं है। आमीन। You know what? आप जानते हैं क्या, There's only one people on this earth केवल एक ही किस्म के लोग हैं इस पृथ्वी पे who can never lose. जो कि कभी हार नहीं सकते, Whatever the situation may be, चाहे कोई हालात क्यों ना हो, they can never lose वो कभी हारेंगे नहीं, because they are in the plan of God. क्योंकि वो खुदा की योजना में है। They are never in the losing side. वो कभी भी हारने वाली जगह पे नहीं है, They are on the winning side. वो हमेशा जीतने वाली जगह पे है। And brother, if you are in that side tonight, और भाई अगर आप उस जगह पे हैं, उस तरफ हैं, you can आज रात्रि, shout. You can shout a rapture. तो फिर आप एक रैप्चर की ललकार कर सकते हैं। Amen. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन, Amen. Amen. आमीन। I can already see theophanies bumping. मैं पहले से थियोफनी को आपस में पंप करते देख पाता हूँ। I can already see theophanies saying, I want to wear this morning. मैं पहले से थियोफनियों को देख पाता हूँ कहते हुए कि मैं इस देह को पहनना चाहता हूँ। Theophany can't stay it any longer. थियोफनी अब रुक नहीं पा रही It's है। time theophany and natural come close. ये समय है कि थियोफनी और प्राकृतिक एक साथ Rapture! रैप्चर, Rapture! रैप्चर, Rapture of Elijah! एलिया का रैप्चर। Oh my! ओ माय,
Amen. 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 Hallelujah. What a rapture I can see here. क्या रैप्चर जो मैं यहाँ देख पाता हूँ। You can shake each other's hands हम एक दूसरे के हाथ मिला सकते हैं and say this. और ये कह सकते हैं Our God is a great God. हमारा खुदा एक महान खुदा है। Brother, भाई, sister, बहन, our enemies are defeated. हमारे दुश्मन परास्त किए गए हैं। They are already afraid. वो पहले से भयभीत हो चुके Their हैं। hearts are melting. उनके हृदय थर्राते हैं। We have won. हम जीत गए हैं। We have won. हम जीत चुके हैं। We have won. हम जीत चुके हैं। We have won the victory. हमने जीत को हासिल किया है। Oh my. ओ माय, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। Glory. महिमा हो। Glory. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। My. The screams. ओ The चिल्लाना, shout. वो ललकारे, Hallelujah. हालेलुया। The glory. महिमा, Oh, praise God. हालेलुया। Praise God. खुदा की तारीफ हो, Praise God. खुदा की तारीफ हो। Say hallelujah. हालेलुया बोलिए। Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। Thank you, धन्यवाद Lord. यीशु। धन्यवाद प्रभु। My. हालेलुया। I can see a थैंक यू rapture here. जीसस। ओ मैं एक रैप्चर को यहाँ देख पाता हूँ। Rapture becoming flesh. रैप्चर देह में आता हुआ। Rapture in your flesh. रैप्चर आपकी देह में। It's working here. ये यहाँ काम कर रहा है। The quickening power. वो चिल्ला देने वाली The सांस, dynamics. वो गतिशीलता Moving you. आपको हिलाती है, Filling you. हिला रही है, Rapturing you. रैप्चर कर रही है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। आमेन। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। 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 Glory. महिमा हो, Glory. महिमा हो। Hallelujah. हालेलुया। थैंक यू Oh, जीसस। my. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. थैंक यू। The news are already coming. खबरें पहले से आ रही हैं। Amorites are afraid. अमोरी घबरा रहे हैं, Their hearts are melting. उनके दिल पिघल रहे हैं। And on the other hand, और दूसरी तरफ people are getting in line with God. एक ऐसे लोग हैं जो खुदा के साथ एक संबंध में आ रहे हैं। When a people come in line with their God, जब कुछ लोग खुदा के साथ एकता में आते हैं, that is the most powerful army. ये सबसे शक्तिशाली प्रजा सेना होती है। When your thoughts are in line with God's thoughts, जब आपके विचार खुदा के विचारों के साथ एक पंक्ति में आए, you are a very strong army. आप एक बहुत बलिष्ठ सेना है। You cannot be defeated. आप हराए नहीं जा सकते। One man is enough एक आदमी काफी है to turn the whole world. पूरी दुनिया को पलटने के लिए। And this is the day. और ये वो दिन है, God has found such people. खुदा ने ऐसे लोगों को खोजा है। There is a super race in the land. एक सर्वोच्च जाति इस भूमि में पाई जाती है। A bride, एक दुल्हन, an elect. एक चुना हुआ, Some soldiers कुछ सैनिक get up early in the morning, जो कि सुबह भोर को उठते हैं, who don't sleep on, जो कि सोते नहीं रहते, who don't have a loose grandma's tummy, जिनका एक झूलता हुआ पेट नहीं है दादी के समान, but they are strong. पर वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। They are praying. वो प्रार्थना करते They are हैं, worshiping. वो उपासना करते हैं, They understand who their God वो is. समझते हैं उनका खुदा कौन है। At that time, उस समय पर on other one side, एक तरफ there's a sense of fear in the people. एक डर का एक भाव है लोगों के अंदर। Devil and his army are shaken. शैतान और उसकी सेना घबरा रही है। And God turns at that time to his people. खुदा उस समय अपने लोगों की ओर मुड़ता है, Because now it's God who's leading his people. क्योंकि अब ये खुदा है जो अपने लोगों की अगुवाई कर रहा है। Every minute he'll be telling them something to do. हर क्षण वो उन्हें कुछ बताए करने के लिए। Now go this way, now turn this way, now go this way. अब इस मार्ग पे जा, अब यहाँ मुड़, अब वहाँ मुड़, अब ऐसे जा। At that time, ठीक उस समय पे the Lord said unto Joshua, प्रभु ने यहोशू से कहा, make these sharp knives अपने लिए चकमक के छुरियां बना and circumcise again और फिर से खतना कर the children of Israel. इज़राइल के बच्चों को The second time. दूसरी बारी। And Joshua made him sharp knives और यहोशू ने उसके लिए चोखी छुरियां बनाई and circumcised the children of Israel. और इज़राइल के बच्चों का खतना किया। और इतनी खतने में क्या तो आगे की खाल निकालते हैं,
अब लाखों लोग हैं, उन सब की खालें एक जगह जब इकट्ठी करी तो एक खालों का पहाड़ बन गया, इसलिए उस जगह का नाम रखा गया हिल ऑफ द फोर स्किन्स। खलड़ियों का पहाड़। आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हैं? खलड़ियों का पहाड़ क्या बता रहा है? हमारे जीवन की सारी गंध, पूरी प्रजा की गंध अब इस पहाड़ पर है। जैसे ओखला में पीछे आओ तो वहां पे एक डंप यार्ड दिखता है, यस, सैनिटरी लैंडफिल, ऐसे ही एक खलड़ियों का पहाड़ जो सड़ेगा, ये बताने के लिए ये हमारी पुरानी गंदगी थी जो आज निकल गई। आमेन, हालेलुया। What a beautiful experience. कितना खूबसूरत तजुर्बा है। What's happening here? क्या हो रहा है यहाँ पर? Circumcision. खतना। Why was it happening the second time? क्यों ये दूसरी दफा हो रहा है? Because children who were born on the way, क्योंकि बच्चे जो रास्ते में पैदा हुए थे, they were not circumcised. उनका खतना नहीं हुआ था, And God was in covenant with them only when they were circumcised. और खुदा उनके साथ वाचा में बद्ध तभी होगा जब उनका खतना होगा। Without circumcision, बिना खतने के the covenant was not in effect. जो वाचा है वो लागू नहीं होगी। God is a great God, खुदावन महान खुदा तो है, and they are the people of God. और वो खुदा के लोग भी हैं। Yet if they are not connected तो भी अगर वो जुड़े ना by a covenant, एक वाचा के अंदर होते God हुए, can't do anything for them. खुदा उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। Are you listening, क्या आप please? सुन रहे हैं कृपया? So they had to show something, तो उन्हें कुछ दिखाना अवश्य था that we are in covenant with our God. कि हम प्रभु आपके साथ, हम अपने प्रभु के साथ एक वाचा में बंधे हैं। In other words, दूसरे शब्दों में, to fight in that land, उस भूमि में लड़ने के लिए the first most important thing was, पहली महत्वपूर्ण चीज वो ये थी, are you in covenant? क्या आप वाचा में हैं? That is why David said, इसलिए दाऊद ने कहा, this uncircumcised, ये खतना रहित। he knew, वो जानता था, when I am in circumcised, जब मेरा खतना हो गया है, I am in covenant with my God. मैं अपने खुदा के साथ एक वाचा में हूँ। In other words, दूसरे शब्दों में, the first stage of the rapture, पहली स्थिति रैप्चर की है, the first step पहला कदम was that point. वो ये था Are they in covenant? कि वो वाचा में है या नहीं। And that covenant was that circumcision was a seal. और वो जो वाचा, वो खतना एक मोहर थी। Now I may go a little deep tonight. Sit down, please. हो सकता है मैं आज रात ही थोड़ा गहराई में जाऊं, बैठिए कृपया। We are here for some strong meat. Amen. क्योंकि हम यहाँ पर कुछ ठोस मांस के लिए हैं। आमीन। How many know कितने जानते हैं circumcision was called the seal? खतने को मोहर कहा जाता था। A seal that you carried in your body. एक ऐसी मोहर जो कि आप अपने शरीर में लेके चलें। The circumcision of the Old Testament is the baptism of the Holy Ghost of the New. जो खतना है पुराने नियम का, वो पवित्र आत्मा बपतिस्मा है नए नियम का। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? But now we are seeing a different Gilgal. पर अब हम एक फर्क गिलगाल देख रहे हैं। A Gilgal that comes after the opening of the word. एक ऐसा गिलगाल जो कि वचन के खुलासे के बाद आता है। Now you must have realized on Sunday, अब आपने बात समझी होगी संडे को, even before you took baptism, यहाँ तक कि ठीक इससे पहले आपने बपतिस्मा लिया, you had to realize that Jesus Christ is Christ. आपको ये समझना जरूरी था कि यीशु मसीह ही मसीह है। This Jesus is Christ. ये यीशु आज मसीह है। A seal had to be opened to you, एक मोहर आपके लिए खुलना जरूरी थी, which is the seventh seal. जो कि 7वीं मोहर है। Then came baptism. तब आता है बपतिस्मा। आमीन। It happened with the eunuch. ये खोजे के साथ हुआ, It happened with everybody. ये हर एक के साथ होता है। आमीन। Oh my. And what's happening here? क्या हो रहा है यहाँ पर? There's a seal being applied on the people. एक मोहर है जो कि लोगों पे लगाई जा रही है। Brother Branham said seal is a security. आमीन। भाई ब्रैनम ने बताया मोहर जो है वो एक सुरक्षा है। Seal is a sign of finished work. मोहर एक पूरे किए हुए काम का प्रतीक है। It's a security. ये एक सुरक्षा है। There's a third thing also I'm forgetting. And a sign of ownership. और ये ओनरशिप को भी दर्शाती है। Ownership, security, सुरक्षा and seal till the destination. Finished work. और
मोहरबंदित होना मंजिल तक के लिए एक Are you पूरा किया हुआ understanding? काम। क्या आप समझ रहे हैं? Circumcision is a seal. खतना एक मोहर है, A seal which came in Genesis 17. एक ऐसी मोहर जो कि उत्पत्ति 17 में आई। And the time that seal came, और जिस समय वो मोहर आई, Abraham changed to Abraham. अब्राम अब्राहम में बदल गया, Sarai changed to Sarah. साराय बदल गई सारा में। Now you know a female doesn't have circumcision, अब आप जानते हैं स्त्री में खतना नहीं होता, but she is considered circumcised through her husband. पर वो खतना के साथ मानी जाती है अपने पति के द्वारा। Now here, but the type is different. पर यहाँ पर तस्वीर फर्क है। It's the circumcision of the heart. ये तो खतना हृदय का है, Because that when the Old Testament was of the foreskin. क्योंकि पुराने नियम में जबकि खतना खलड़ी का होता था, But today it's the circumcision of the heart. पर आज तो खतना हृदय का है। Something is cut away. कुछ ऐसी चीज है जो काट के निकाल दी गई है, And you have to do it. और आपको इसको करना है। God will not do it. खुदा इसको नहीं करेगा। You have to make knives. आपको छुरियां बनानी है, And you have to cut. और आपको काटना है। You have to suffer the pain. आपको दर्द को झेलना है। Amen. That is the experience at Gilgal. ये है तजुर्बा गिलगार पर। Do you want to go in the rapture? क्या आप रैप्चर में जाना चाहते हैं? Do you want that victory to strike your life? क्या आप चाहते हैं वो जीत आपके जीवन में आए? Then here to suffer a little bitterness. तो आप आ जाइए आगे थोड़ी कड़वाहट को झेलने के लिए। Then you also have to suffer a little pain. तो फिर आपको थोड़ा दर्द भी झेलना पड़ेगा, A pain of separation. एक अलैदगी का दर्द। And you have to do it yourself. और आज काम को आपको खुद करना पड़ेगा। God will not come with that knife. खुदावन उस चाकू के साथ नहीं आएगा। You have been given the knife. आपको वो छुरी दी गई है, You make your own knife. आप अपने छुरी खुद बनाइए And you cut it. और आप खुद काटिए। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? How did you do it? उन्होंने इसको कैसे किया? Making knives out of the rocks. चट्टानों पत्थरों के द्वारा वो खुद छुरी बना रहे हैं। How did you do it? उन्होंने इसको कैसे किया? Rocks which had 3 corners. Amen. ऐसे पत्थर जिनके 3 कोने थे। That was the kind of rocks which made knives. इस किस्म के जो पत्थर थे उनसे चाकू बनते थे। What is happening? क्या हो रहा है? The rock struck the image. Amen. जो पत्थर है वो उस मूर्ति पे लगा And the image fell down. और मूर्ति गिर गई। That हालेलुया। is circumcision. ये है खतना। The Amen. rock cutting the world. जो चट्टान जो पत्थर है वो पृथ्वी को काटता है, Cutting the world from you. दुनिया को आपसे काट के अलग कर देता है। And you have to do it और yourself. इस काम को आपको खुद करना है। Are you willing for that tonight? क्या आज रात्रि आप इसके लिए हामी भरते हैं? Amen. Are you ready to make your knives? क्या आप अपनी छुरियां बनाना चाहते हैं? तैयार हैं? Are you ready to cut this world from your life? क्या इस दुनिया को अपने जीवन से काटना चाहते हैं? Brother, this is your decision. भाई ये तो आपका फैसला है, And you have to do it very fast. और इस काम को आपको बहुत तेजी से करना होगा, Because God is not going to wait for a long time. क्योंकि खुदावन बहुत लंबे समय के लिए रुकेंगे नहीं। That one day was just given for circumcision. वो एक दिन केवल खतने के लिए दिया गया था। Everybody got circumcised. हर एक ने अपना खतना करा लिया। Some millions people, some million people, कुछ लाख लोग they got circumcised. उन्होंने खतना करा And they threw the foreskin. और खलड़ी को फेंक दिया, And it all made a hill. और उसने एक पूरे पहाड़ को बना दिया, A hill of foreskins. खलड़ियों का पहाड़। And everybody when they see this hill of foreskin, और हर एक कोई जब ये खलड़ियों के पहाड़ को देखता है they realize वो ये समझते हैं there lies the bad part of my life. वहां पर वो मेरे जीवन का पिछला हिस्सा, बुरा हिस्सा पड़ा है, And today it is cut. और आज वो मेरे से अलग काट दिया गया है। Joshua has cut it. यहोशू ने इसको काटा है। आमेन, My. आमेन, हालेलुया। And in the olden times, circumcision was not a surgery. और पुराने जमाने में जो खतना होता था वो कोई सर्जरी नहीं होती थी। This circumcision was without anesthesia. ये बिना सुन करने वाली दवाई के होता था ये ये नहीं खतना। था कि पहले ज़ाइलोकेन लगाओ भैया, दर्द नहीं होना चाहिए। No. वो circumcision है ही नहीं जिसमें दर्द ना हो. There had to be a pain. वहां पर एक दर्द होना जरूरी है। You had to suffer a pain. आपको एक दर्द को झेलना है। What is happening? ओह, क्या हो रहा है? The world is getting cut. दुनिया काटी जा रही है। Remember when the cattle were being marked? आप जानते हैं उस बात को
जब उन जानवरों पे मोहर लगाई जाती थी, Hereford Association. हेयरफोर्ड एसोसिएशन, But when the red hot iron was brought जब वो लाल लोहा लाया जाता है जो बिल्कुल गर्म होता है and it was put on that cattle, और उस मवेशी पे लगाया जाता oh, है, he cried in pain. हो वो दर्द से चिल्लाता है, His flesh was burning. उसका जो मांस है वो जल रहा है। But after some time, कुछ समय के बाद he cooled down. वो ठंडा हो गया, But now, परंतु अब permanently marked. हमेशा के लिए उस पे चिन्ह कर दिया गया है। This one can never die. ये अब हे मैं नहीं मरेगा, They will never make a soup out of him. इसका कोई सूप नहीं बनेगा, He will serve the master's purpose. वो मास्टर मालिक के काम को पूरा करेगा। Brother, भाई, are you ready for that? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? What is the knife today? आज ये छुरी क्या है? The king's sword. राजा की तलवार, And using the king's sword, और इस राजा की तलवार का इस्तेमाल करते हुए there's a circumcision एक खतना है which happens in your life. जो कि आपके जीवन में घटता है। That is why John was said, इसलिए यूहन्ना को कहा गया, this book will be sweet in your mouth, ये पुस्तक तेरे मुंह में मीठी लगेगी will it make that belly bitter. पर तेरे पेट को कड़वा करेगी। You have to suffer that bitterness. आपको इस कड़वेपन को झेलना होगा, Bitterness of separation. अलैदगी के कड़वेपन को। You are a peculiar people. आप एक अनोखे लोग हैं। आमीन। Then if I say Elijah, तब मैं अगर कहूं एलिया, Elijah church, एलिया कलीसिया ready to go on the rapture? तैयार है रैप्चर में जाने के लिए? Yeah. जी हाँ, I came to my first step. मैं अपने पहले कदम पे आया, I got circumcised. मैंने अपना खतना किया। I'm ready now अब मैं तैयार हूँ for the journey. उस यात्रा के लिए। आमीन। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? The hill of foreskins. वो खलड़ियों का पहाड़। Then it explains the reason why the circumcision took the second time. अब फिर ये समझाता है उस कारण को कि ये खतना फिर से क्यों घटा, Because the children born on the way were not circumcised. क्योंकि बच्चे जो मार्ग में पैदा हुए थे उनका खतना नहीं हुआ था, But now they are circumcised. पर अब उनका खतना हो गया है। So what happened? क्या हुआ? Of course, when the blood flows out and there's a weakness, so they rested. बेशक जब खून बहता है और खतने के बाद उन्होंने I आराम किया। request my brother read from verse 7. 7 ऐसे मैं आग्रह करूंगा मेरे भाई पढ़ें। तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था, उनका खतना यहोशू से कराया। Joshua circumcised. यहोशू ने खतना किया। Joshua means the Holy Ghost. यहोशू का मतलब है पवित्र आत्मा। He does the work of circumcision. वो खतने का काम करता है, But you have to walk there. पर आपको वहां पर चल के जाना You होगा। have to come to Joshua आपको यहोशू के पास जाना पड़ेगा and say, Joshua, I'm here. और आपको कहना पड़ेगा, यहोशू मैं अब आपके पास हूँ, I'm ready to suffer that pain. मैं उस दर्द को झेलने के लिए तैयार हूँ, I'm ready. मैं तैयार हूँ। But it's over. पर अब ये पूरा हो गया। आमीन। It's finished. खत्म हो गया, I'm circumcised. मेरा खतना हो गया। Joshua smiles. यहोशू मुस्कुराता है, You're on the Lord's side. हाँ अब तुम प्रभु की ओर हो, Now you're preparing for mighty works. अब तुम बड़े कामों के लिए तैयार हो रहे हो। Are you आमीन। listening? क्या सुन रहे हैं? Brother, you need to suffer that pain. भाई आपको उधर झेलना जरूरी है, The pain of separation from the wrong things. बुरी चीजों से अलैदगी का दर्द। Yes, verse 7. 7वीं आयत। Joshua circumcised. यहाँ से आगे पढ़िए. क्योंकि मार्ग में उनके खतना न होने के कारण वे खतना रहित थे। Okay, verse 8. और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। चंगे होने के लिए भी 2-3 दिन लगे, तो कहाँ रहे? अपनी छावनियों में रहे, आराम किया. Now read further. तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है, उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। Why was it called Gilgal? इसे गिलगाल क्यों कहा गया? This day, इस दिन when the foreskin left, जब ये खलड़ी अलहदा हो गई, Egypt left. मिस्र छोड़ के चला गया। आमीन। And I have rolled away the reproach of Egypt. और मैंने मिस्र की जो नाम धराई है वो तुमसे दूर की है। From today, आज से you are no more slaves. आज से तुम अब आगे को गुलाम नहीं हो। Don't ever have that idea. इस विचार को अपने दिमाग में रखना भी मत। I will be beaten and I have to serve somebody.
मेरे को पीटा जाएगा और मुझे किसी की सेवा करनी होगी। Once you are circumcised, एक बारी जब तुम्हारा खतना हो गया, you are kings, तुम राजा हो, you are lords, तुम प्रभु हो, you are rulers. तुम शासक हो। Get that thing in your mind now. इस बात को अपने हृदय में डाल लो The reproach of Egypt is not more anymore with you. कि मिस्र की जो नाम धराई है वो अब तुम्हारे साथ जुड़ी नहीं है। What happened? क्या At हुआ? Gilgal, the reproach of this world, of the old birth, is taken away. आमेन। गिलगाल पे क्या हुआ? इस पुरानी पैदाइश की जो नाम धराई है, उस दुनिया की जो नाम धराई है, वो हटा दी जाती है। All the old things of the old birth, सारी चीजें इस पुरानी पैदाइश की, every wrong that you done, हर एक बुरा काम जो आपने किया है, or you thought, या आपने सोचा है, or you said, या आपने बोला is है, removed at Gilgal. गिलगाल पे अलहदा कर दिया जाता है। And you have to tell Joshua, you do it. और आपको यहोशू को ये कहना पड़ेगा कि तू इस काम को कर मेरे लिए। ये आज कैसे होता है? आज ऐसे होता है, अब ये भाई और बहन दोनों करेंगे। अपने को लेके पवित्र आत्मा के पास प्रार्थना में जाओ और कहो, यहोशू मेरा खतना कर दे, मुझे दुनिया से अलहदा कर दे। बड़ी सिंपल सी दुआ है, मैं तैयार हूं। And when Joshua starts working in your life, और जब यहोशू आपके जीवन में काम करने लगता है, automatically all the world will start leaving. अपने आप पूरी दुनिया छोड़ने लगेगी। The old habits, बुरी आदतें, the old fashion, पुराना फैशन, the old things in life. पुरानी चीजें जिंदगी की। Oh my, why? You're now becoming heaven bounded. ओह, आप खुशी की बात है, आप स्वर्गीय बनते जा रहे हैं। You have started a journey. आपने एक यात्रा शुरू कर ली है। You have realized you don't belong to Egypt. आपने ये समझ लिया है कि अब आप मिस्र देश के नहीं हैं। You belong to another place. आप एक और स्थान के हैं। Gilgal has taken place in your life. गिलगाल आपके जीवन में घटा है। The world has left. दुनिया आपको छोड़ के जा चुकी है। Amen. Amen. Let that foreskin rot away anywhere. ऐसा हो कि वो खलड़ी कहीं भी सड़ जाए, Let it rot. उसे सड़ने दीजिए। But you are alive. पर आप जो जीवित हैं, My God. Amen. Hallelujah. You carry a seal. आप एक मोहर को लेके अपने A साथ चले। sealing. एक मोहर बंदित होना। Joshua the third angel. यहोशू तीसरा दूत। Amen. Sealing. मोहर लगना। Gilgal. गिलगाल। 11. Amen. 11. The third angel. तीसरा दूत। Sealing. मोहर बंदित करना। Just before destruction. ठीक विनाश से पहले, Just before the takeoff. ठीक उड़ान से पहले, Joshua the sealing angel. यहोशू जो मोहर लगाने वाला दूत है, Sealing the people. लोगों को मोहर लगा रहा है, Sealing lives. जीवनों पे मोहर लगा रहा है, Making them confirmed उन्हें पक्का निष्ठावान कर रहा है that you don't belong to this world. कि तुम इस दुनिया के नहीं हो, You belong to another world. तुम एक और दूसरी दुनिया के हो। Did you hear that voice in your life? क्या आपने इस आवाज को अपने जीवन में सुना? I'm asking you. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, Did you hear that voice in your life? क्या आपने इस आवाज को अपने जीवन में सुना है? That my son, कि मेरे बेटे, my daughter, मेरी बेटी, you don't belong to this world. तू इस दुनिया की नहीं है। Yes, you go to the office. हाँ, आप ऑफिस तो जाते हैं। Yes, you go in the world to do things. हाँ, दुनिया में कुछ कामों को करने जाते हैं, But you don't belong here. पर आप यहाँ के हैं नहीं। You belong to another place. आप एक और स्थान के हैं, You belong to another world. आप एक और दुनिया के हैं। Can you hear that voice? क्या आप उस आवाज को सुन पाते हैं? Then you have come to a Gilgal. तो आप गिलगाल पे आए हैं। After coming to Gilgal, वो foreskin जो निकल गई वापस जोड़ नहीं सकते। यस, वो वापस जुड़ेगी नहीं। जो चीज कट गई वो कट गई, अब वो वापस नहीं जुड़ेगी। आमेन। अगर पाते हैं कि जो कट गया वो फिर से चाल काम कर रहा है, तो मैं कहूंगा कटाई कहां? इसके अब तक कटाई नहीं, आधा कटा आधा ऐसे लटकता रह गया। पूरा कटना था, यहोशू को मौका नहीं दिया कि पूरा काट दे। मैं आपको जो बोल रहा हूं वचन से समझे। आमेन। आधा सरकमसीजन हुआ, पूरा नहीं हो पाया। दर्द के मारे उठ गए, भाग गए। हम नहीं झेल पाएंगे, हमसे नहीं चलेगा।
But brother, the real child of God, भाई वास्तविक खुदा का बच्चा, a lamb of God, एक खुदा का मेमना, is submissive. ये अधीन होना समझता है। You need to read church and its condition. आपको कलीसिया और उसकी स्थिति पढ़ने की आवश्यकता है। Submit. अधीन Give Joshua the opportunity यहोशू को मौका दीजिए to cut that old thing away. कि वो पुरानी चीज को काट के अलहदा कर दे। Thou art the potter, I am the clay, Lord. ओ प्रभु तुम कुम्हार है, मैं मिट्टी हूँ। But brother, I want to tell you, पर भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, that happens. ये होता है, That happens ये होता है when seventh seal in this age opens for year. आमेन। जब सातवीं मोहर इस युग में आपके लिए खुल जाती है, When the seventh seal starts identifying in your life, जब सातवीं मोहर आपके जीवन में पहचान देने लगती है, a bitterness begins, एक कड़वाहट चालू हो जाती है, a pain begins. एक दर्द शुरू होता है, You will have sorrow, आपको पीड़ा होगी, but you be of good cheer. पर ढांढस बांधिए, I will see you again. मैं तुम्हें फिर से देखूंगा। Are you listening, please? क्या आप सुन रहे हैं? That is the time we are living in tonight. ये वो समय है जहां पर हम आज रात्रि रह रहे हैं, When the seventh seal takes hold of your life. जब सातवीं मोहर आपके जीवन का कब्जा ले लेती है। Not the coming at Arizona, वो आमद नहीं जो एरिज़ोना पे हुई, but that coming in your life. पर वो आमद आपके जीवन में When it starts identifying, जब वो पहचान देने लगती है, that opening starts doing something. वो खुलासा कुछ आपके अंदर करने लगता है, You realize this is wrong. आप ये पहचान लेते हैं कि ये गलत है। Then Joshua says, I'll cut it. तब यहोशू कहता है मैं इसे काटूंगा, And Joshua cuts it away. और यहोशू से काट के अलग कर देता है। The opening of the word helps you do it. वचन का खुलासा आपकी मदद करता है इस काम को करने में। It washes you with the waters of the word. ये वचन के पानियों से आपको धोता है, It cuts the foreskin. ये खलड़ी को काट देता है, And it seals you. और वो आपको मोहर बंधित करता है। The sealing angel seals you. वो मोहर लगाने वाला दूत आपको मोहर बंधित करता है। That's what he done with many in this church. यही काम उसने बहुतेरों के साथ इस कलीसिया में किया है Some few years back. कुछ साल पहले, And I believe he still does it. और मैं विश्वास करता हूँ अभी भी करता है। Somebody here, somebody there. कोई ना कोई यहाँ पर, कोई ना कोई वहाँ पर, Getting sealed by the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर को प्राप्त करता हुआ। When you get sealed by the Holy Ghost. जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर बंधित होते हैं At Gilgal. गिलगाल पर आके, Now you are a finished product. अब आप एक संपूर्ण प्रोडक्ट हैं। You are sealed to destination. अब आप गंतव्य के लिए मोहर बंधित हो चुके हैं। The owner has a confidence. जो मालिक है उसका एक भरोसा है, And he knows that he owns you. और वो जानता है कि वो आपका मालिकाना हक रखता है, And he knows this. और वो जानता है That I have sealed you for a purpose. कि उसने आपको एक खास उद्देश्य से मोहर बंधित किया है, Because you are not staying here. क्योंकि आप यहाँ नहीं रहेंगे, You are going to a destination. आप एक मंजिल पे पहुंच रहे हैं। Amen. Hallelujah. Amen. Can you catch that mystery? क्या भेद पकड़ सकते हैं वाला? Amen. Where's it all taking place? ये सब कहाँ घट रहा है? Gilgal. गिलगाल पर। Reproach of Egypt taken away. मिस्र की नामधराई हटा दी गई। If there's still some people in this church who have not come to their Gilgal, अगर यहाँ पर आज भी कलीसिया में कुछ लोग हैं जो अपने गिलगाल पे नहीं आ पाए, better do it tonight. ऐसा हो कि आप आज रात कर लें। Don't put it for tomorrow. इस बात को कल के लिए ना छोड़ें, Do it right now. ठीक अभी इसी वक्त करें। After the meeting is over, go home and get your Gilgal. जब मीटिंग खत्म हो जाए घर जाइए और अपने गिलगाल को प्राप्त कीजिए। Be sure that you are sealed. इस बात को पक्का करिए कि आप मोहर बंधित हैं। Be sure that all that old thing has been taken out of your life. इस बात को पक्का कीजिए कि तमाम पुरानी चीजें आपके जीवन से हटा दी गई हैं। Brother Branham said, when you are sealed in, devil is sealed out. भाई ब्रह्म ने कहा जब आप मोहर बंधित कर दिए जाते हैं अंदर, तो शैतान बाहर रह जाता है, वो He मोहर में नहीं cannot आया, come into you. वो आपके अंदर नहीं आ सकता। कई गवाहियां सुनी चर्च में, शैतान ने मुझसे ये करवा दिया। इसका मतलब आपने आप तो मोहर बंधित हुआ ही नहीं। मैं नहीं था, वो शैतान ने मुझसे करवा दिया। शैतान ने कैसे करवा दिया? आप तो कुछ दिन पहले कह रहे थे मैं तो मोहर बंधित हूं। अगर मोहर बंधित है तो वो तो मोहर पार करके इधर आ नहीं सकता। तो आपसे क्या शैतान ने कैसे करवा दिया? वो शैतान ने मुझसे करवा दिया ये गलत काम। तो आप थे कहां, अंदर या बाहर? या तो नबी का संदेश सच है या आप जो कह रहे हैं सच है। You see, when you are sealed in, आप पाएंगे एक बारी जब आप मोहर बंधित हो जाते हैं, devil is sealed out. शैतान बाहर हो जाता है, He cannot come in. वो अंदर घुस नहीं सकता। मान लो
मान लो अभी तक मोहर बंदित हुए नहीं, अभी तक नहीं हुए, होने की जरूरत है। जिस दिन सचमुच में हो जाओगे उसके बाद ये अलापना बंद हो जाएगा। शैतान ने मुझसे करवा दिया। तो भाई लाल ने कहा, आप यहां किसकी गवाही देने खड़ी हुई हैं, खुदा की या शैतान की? एक दिन ऐसी गवाही देने के भाई एक बहन खड़े हुए, उनसे कहा आप किसकी गवाही देने खड़े हुए हैं यहाँ पे? भाई लाल ने कहा खुदावंत की या शैतान की? कई दुआएं शैतान की गवाहियां देती हैं, खुदा की गवाही नहीं। शैतान ने मुझसे ये करवा दिया, शैतान ने मेरा मुंह बंद रखा। इसका इतने दिनों तक शैतानी काम कर रहा था आपके जीवन में, और शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है, तो फिर आप मोहर बंदित हुए या नहीं है? जब मोहर बंदित अंदर हो गए तो शैतान तो मोहर बंदित बाहर है, वो तो आ नहीं सकता अंदर। तो आज मुझसे ये हो गया, कल मुझसे ये हो गया, ये सब बकवास बंद हो जाएगी ब्रदर। आमेन। डेविल कैन नॉट कम इन शैतान अंदर आ नहीं सकता अनलेस यू गो आउट, जब तक कि आप खुद बाहर ना जाएं। He said it in breach. उन्होंने इस बात को फासले वाले संदेश में कहा। So if you have not come to your Gilgal till now, तो अगर अभी तक आप अपने गिलगाल पे नहीं आए हैं, better come जल्दी आ जाइए and let the reproach of the old birth be taken away. और ऐसा हो पुरानी पैदाइश की नामधराई आपसे दूर कर दी जाए। What is the reproach of the old birth? इस पुरानी पैदाइश की नामधराई क्या है? All that are born of a woman have to die. हर एक कोई जो स्त्री से पैदा हुआ है उसे मरना है। But this day, पर इस दिन I've taken that reproach away. मैंने ये नामधराई उनसे दूर कर दी है। You don't have to die. आपको मरना नहीं है। You have another sealing. आपके पास एक और मोहर बंदित होना है। You have another birth. आपके पास एक और पैदाइश है। You are not going to die anymore. आप आगे को मरेंगे नहीं। That reproach is taken away. वो नामधराई हटा दी गई है In that circumcision. उस खतने में होते हुए। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Verse 10. 10वीं आयत। इसलिए इज़राइली गिलगाल में डेरे डाले रहे और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह माना। The time they had come to Gilgal, जिस समय वो गिलगाल में आए थे, it was a time of Passover. ये लांगन पर्व का समय था। How appropriate कितना ज़्यादा उपयुक्त है that right at the time the world was separated from them. आमेन कि ठीक उस वक्त जब दुनिया उनसे अलग हुई, It was because they had an atonement. वो इसलिए था क्योंकि उनके पास एक प्रायश्चित था। That blood separated the sin from their life. आमेन उस लहू ने उस पाप को उनके जीवन से हटा दिया। Everything that you love, that you like, हर एक चीज जिसके आपका प्रेम है, जो आपको पसंद है, is taken away. वो सब हटा दी जाती है। Of course, if it belongs to God, बेशक अगर वो खुदा की ओर से है, it stays. वो रहती है, But if it is not in His plan, और परंतु अगर वो उसके योजना में नहीं है, it goes away. वो चली जाती है। And there's a pain और फिर एक दर्द होता है for a little time, थोड़े समय के लिए, but the pain goes away. पर जो दर्द है वो चला जाता है। But now you realize you're circumcised. पर अब आपको ये पता लगता है कि आपका खतना हो गया है। Circumcised for a purpose. एक उद्देश्य के लिए खतना हुआ है। Circumcised to be a people. एक लोग, एक प्रजा बनने के लिए खतना हुआ है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? If the worldly fashion keeps on creeping in, अगर दुनियावी फैशन अंदर घुसने की कोशिश करता है, it हमेशा goes आता out, रहता है, comes in, goes out, comes in. आता है बाहर चला जाता है, आता है बाहर चला जाता है। Brother, the sealing has not taken place. भाई मोहर बंद होना हुआ नहीं, Because that sealing is a permanent sealing. क्योंकि ये मोहर लगना एक स्थायी काम है। Either get sealed in or get sealed out. या तो एक बारी मोहर बंद हो जाइए अंदर, या तो बाहर रही है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? But these people chose to get circumcised. पर इन लोगों ने चुनाव किया कि इनका खतना हो। All true Israel will go through this हर एक सच्चा इजरायली इससे गुजरेगा, and kept the Passover. और उसने फसह के पर्व को माना। All these things are happening at Gilgal. ये सब चीजें गिलगाल में घट रही हैं। Where does the rapture begin? ये रैप्चर कहाँ शुरू होता है? From your atonement. आपके प्रायश्चित से। आमेन, आमेन। When he started preaching the seals, जब उसने मोहरों का प्रचार करना चालू किया, he preached simplicity. आमेन, उसने साधारणता वाला संदेश प्रचार किया। And I put it as a question in this time, question paper. और मैंने इसको एक सवाल के रूप में भी इस प्रश्न उत्तर वाले
इस क्वेश्चन पेपर में डाला, What is the basis of the third pole? तीसरे खिंचाव का क्या आधार है? It was the atonement. ये प्रायश्चित था। What is the basis for the rapture? रैप्चर का क्या आधार है? Atonement. ये प्रायश्चित है। Without atonement, there's no rapture. बिना प्रायश्चित के कोई रैप्चर नहीं है। Atonement was opened in Abel, आमीन। प्रायश्चित खोला गया हाबिल में, and rapture took place in Enoch और रैप्चर घटा हनोक में, when he walked by Abel's revelation. जब वो हाबिल के प्रकाशन से चला, उसके द्वारा चला। Rapture begins at Gilgal. रैप्चर गिलगाल पे शुरू होता है। Rapture begins at Passover. रैप्चर फसे पे शुरू होता है। Rapture begins at the atonement. रैप्चर प्रायश्चित पे शुरू होता है। When you identify with the atonement जब आप प्रायश्चित के साथ अपने आप को पहचानवाते हैं and you eat the paschal lamb, और आप फसे के मेमने को खाते हैं। they observed the Passover. उन्होंने फसे को माना, They observed and they killed the lamb. उन्होंने माना और उस मेमने को मारा। They ate his flesh उन्होंने उसके मांस को खाया with bitter herbs. उन कड़वे सागपात के साथ। Again, there's an eating in Gilgal. फिर से एक खाना है गिलगाल पर। And we'll read a little later what kind of bread they ate, और हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे किस किस्म की रोटी उन्होंने खाई, which will make us understand what is happening at Gilgal. जो कि हमें समझाएगी गिलगाल पे हो क्या रहा है। At Gilgal, the world is taken away. गिलगाल पर दुनिया अलग कर दी जाती है, But at the same time, परंतु ठीक उसी समय your atonement is revealed to you. आपका प्रायश्चित आपको प्रकट किया जाता है। Your lamb is revealed to your life. आपका मेमना आपके जीवन के लिए प्रकट किया जाता The है। token is applied. जो टोकन है वो लागू किया जाता है। You say circumcision, आप देखते हैं खतना, you say token. आप कहें चिन्ह, All it means is getting sealed इन सब का मतलब है मोहर बंदित होना and eating the lamb, और मेमने को खाना। understanding and recognizing your atonement. समझना और अपने प्रायश्चित को पहचानना, That is what is happening at Gilgal. यही होता है गिलगाल पर। Brother, that atonement word was opened when the seals were opened. भाई ये प्रायश्चित का शब्द खुला जब मोहरें खुली, And that is why you can't eat atonement until the atonement was revealed. इसलिए आप उस प्रायश्चित को खा नहीं सकते जब तक कि प्रायश्चित प्रकट ना हो। That is why this Gilgal and eating came after the revealing of the book. इसलिए गिलगाल और ये खाना इस पुस्तक के प्रकट होने के बाद आया। You know what's happening in the Bible? आप जानते हैं बाइबल में क्या हो रहा है? As the lightning goes from east to west, जैसा रोशनी, जैसा बिजली पूरब से लेके पश्चिम की ओर so जाती shall है, the coming of the Son of Man be. वैसे ही मनुष्य की पुत्र की आमद होगी। And immediately after that, ठीक उसके बाद, after that coming verse, उस आमद वाली आयत के बाद the very next verse, अगली आयत, wheresoever the body is, जहां कहीं ध्येय है the eagles will be gathered. उकाब वहां इकट्ठे होंगे। What happened? क्या हुआ? The coming, the seventh seal, Revelations 10 provided the atonement body word to be eaten by the eagles. आमेन। आमद प्रकाशित वाक्य 10 इसने मुहैया किया उस ध्येय रूपी वचन को जो कि उकाबों के द्वारा खाया जाए। आमेन। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? That is the age where we have come to. ये वो युग है जहां पर हम आए हैं। That is what we are doing every Sunday, every Tuesday. यही काम तो हम हर एक संडे, हर एक ट्यूसडे कर रहे हैं। Eating from that body word. उस ध्येय रूपी वचन से खा रहे हैं। And now what else did they eat? और उन्हें और क्या खाया? Verse 11. 11वीं आयत। This is all- yes. और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अखमीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। They started eating the corn of the land. उन्होंने भूमि का दाना खाना शुरू किया। This is another experience at Gilgal. ये एक और तजुर्बा है गिलगाल पे। Amen। What did you read further, brother? आगे पढ़िए भाई। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया और इजरायलियों को आगे फिर कभी मन्ना न मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। What does it mean? इसका क्या अर्थ है? The food that fell in the church ages, वो भोजन जो कि कलीसिया कालों में गिरा था, every day हर रोज stopped. रुक गया। Now they have come to the land अब वो भूमि में आ गए हैं and they're eating from the corn of the land. और अब वो इस भूमि की उपज से खा रहे हैं। What is the corn of the land? ये भूमि क्या दाना क्या है? Let me read it out to you if I can. आइए मैं आपके लिए इसको पढ़ूंगा अगर मैं पढ़ कर पाऊं, And let me show you what it is. और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है। This is from the message proving his word. ये उस संदेश से है। आमेन।
उसके वचन को साबित करना। In the message proving his word, Brother Branham is saying, और इस संदेश में वचन को साबित करने वाले में भाई ब्रैनम ये कह रहे हैं, just a minute, it's coming. एक मिनट रुकिए, वो आ रहा है। Okay. If it comes, if it doesn't come, I still know that. I'll speak it out for you. Yeah, it has come. Just a minute. Yes, it has come. In proving his word, he said, उसके वचन को साबित करने वाले संदेश में उन्होंने कहा, don't you see in shadows? क्या आप परछाइयों में नहीं देखते? Stop here a minute. एक मिनट में यहाँ रुकूंगा। In the last days, अंत के दिनों में there's got to be a place एक ऐसा स्थान होना चाहिए prepared for the word to be made manifest. जो कि तैयार किया जाए, जहां पर वचन प्रकट हो। And we are now living by the evidence of the new land. और अब हम जीवित हैं, अब हम जी रहे हैं उस नई भूमि के प्रमाण के द्वारा। Amen. आमीन। What is that? क्या है वो? The Son of Man. मनुष्य का पुत्र। आमीन। What is the corn of the land? इस भूमि की उपज, उस भूमि का दाना क्या है? The full corn. वो पूरा दाना। What is the corn of that land? उस भूमि का दाना क्या है? The Son of Man. मनुष्य का पुत्र। And we are eating and drinking from the flesh and blood of the Son of Man. और हम खा रहे हैं और पी रहे हैं उस लहू से और मांस से मनुष्य के पुत्र के। Can you understand? Say amen. क्या आप इसको समझ सकते हैं? आमीन बोलिए। So what's happening at Gilgal? तो गिलगाल पे क्या हो रहा है? Sealing, मोहर बंधना होना, circumcision, खतना होना, parting away from old life, पुराने जीवन से अलग eating, और खाना, eating the Passover, फसे को खाना, recognizing the atonement, प्रायश्चित को पहचानना, and eating from the body word of the Son of Man. और देह रूपी वचन से मनुष्य के पुत्र की खाना। All these things start at Gilgal. ये सब चीजें गिलगाल पे शुरू होती हैं। If I go a little deeper, brother, अगर मैं थोड़ा और गहराई में जाऊं भाई, the fuses will start going off. फ्यूजेस उड़ने लगेंगे। But I want to share you something. पर मैं आपसे कुछ शेयर करना Still, let चाहता me हूं। say some things. मुझे कुछ कहने दीजिए फिर भी। The manna ceased. मन्ना तो रुक गया। The daily manna ceased when they started eating the corn of the land. रोज का मन्ना रुक गया जब उन्होंने भूमि की उपज से खाना चालू किया। The Pentecostal message ceased. पेंटेकोस्ट का संदेश रुक गया। The church age message ceased. कलीसिया कालों का संदेश रुक गया। Now they were living by the full word. अब वो पूरे वचन के द्वारा जीवित हो रहे थे। And when they were living by the fullness of the word, अब और जब कि वो वचन की परिपूर्णता से जी रहे थे, they started having their definitions changed. उनकी परिभाषाएं अब बदलने लगी। The definition of pardon changed. वो माफी की परिभाषा बदल गई। The definition of justification changed. धर्मी ठहर जाने की परिभाषा बदल The गई। definition of rapture changed. रैप्चर की परिभाषा बदल गई। Definition of the coming of the Lord changed. प्रभु की आमद की परिभाषा बदल गई। Definition of the blood changed. लहू की परिभाषा बदल गई। Definition of the cross changed. क्रूस की परिभाषा बदल गई। Definition of sealing changed. मोहर बंधित होने की परिभाषा बदल गई। When they started eating from the full word, जब उन्होंने संपूर्ण वचन से खाना शुरू कर दिया, they are not relying on gifts, वो केवल वरदानों पे अपने आप को नहीं टिकाए हुए हैं, but now the fullness of the word परंतु अब वचन की परिपूर्णता is now manifesting in their life. उनके जीवनों में प्रकट हो रही है। The evidence of the land, वो भूमि का प्रमाण, the Son of Man. मनुष्य का पुत्र। Here is a man यहाँ पर एक आदमी with है his back turned. जिसने अपनी पीठ मोड़ रखी है। Why did Sarah laugh? हाँ, सारा क्यों हंसी है? This doesn't belong to this land. ये बात इस भूमि की नहीं है, This belongs to another land. ये बात तो दूसरी भूमि की है, उस भूमि And when की। somebody came in this age और जब कोई इस युग में आया to display that evidence, कि उस प्रमाण को the दर्शाए, rainbow trout ran रेनबो ट्राउट भागी to eat from that evidence. कि वो उस प्रमाण में से खाए, And on eating, और एक खाना they got hooked. खाने में वो हुक हो गए And now they are being pulled. और अब वो खींचे जा रहे हैं। Are you हालेलुया। listening, brother? क्या आप सुन रहे हैं भाई? Hallelujah, brother, हालेलुया, मेरे sister. भाई। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। This is not the little fish. ये छोटी मछली नहीं This is है, the rainbow trout ये रेनबो ट्राउट है getting hooked by the Son of Man message. जो कि मनुष्य के पुत्र के संदेश के द्वारा हुक हो रही है। This is not Son of God. ये खुदा का This is पुत्र, not Son of David. ये दाऊद This का is not पुत्र son of नहीं Abraham. है, ये इब्राहिम का पुत्र This is नहीं son of है, man. ये मनुष्य का पुत्र है। Son of Man in the last days. मनुष्य का पुत्र अंत के दिनों में है। God, Melchizedek, खुदा और मलकीसेदेक in human flesh, इंसानी देह में, giving his flesh, जो कि अपनी देह को दे रहा giving है, his blood अपने लहू को दे रहा for है, a body change. एक देह बदलाव के लिए। And I want to tell you, और मैं आपको बताना चाहता when they हूँ, start eating it at Gilgal, जब उन्होंने इसको खाना शुरू किया गिलगाल पे,
They started receiving faith उनको विश्वास मिलने लगा for the first conquest. एक पहली लड़ाई के लिए। They started realizing उन्होंने बात समझना चालू किया, this food is eagle food. ये खाना जो है यूकोब का खाना है, It's spiritual food in due season. ये आत्मिक भोजन नियमित समय पे है, This is not baby's milk. ये बच्चों का दूध नहीं है, This is strong meat. ये ठोस मांस है, This is Melchizedek. ये मलकी सदैक है, This is King Theophany. ये राजा थियोफनी है, This is Hebrews manifested. ये हिब्रानी प्रकट This is not है, the old Aaronic priesthood, ये पुरानी हारूनी याजक पत्ती नहीं है, but this is another priesthood पर ये एक और याजक पत्ती है which talks to the perfected ones जो कि सिद्ध लोगों से बात करती है and tells them, और उन्हें बोलती है you're not going to be perfect. तुम अब आगे को परफेक्ट सिद्ध You नहीं are होगे, already perfect. तुम पहले से सिद्ध हो चुके हो। हालेलुया, वाह। ग्लोरी, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. That's हालेलुया। what's taking place now. That's what's taking place now. यही चीज अभी घट रही है, That is why the Amorites are getting afraid. इसलिए अमोरी अब घबरा रहे हैं। They're eating the old corn of the land. ये वो पुराने दाने को खा रहे हैं, The उस corn of the land, भूमि के दाने को खा रहे हैं, which is the Son of Man. जो कि मनुष्य का पुत्र है। They've already started eating from the food of the land. उन्होंने पहले से उस देश के खाने से खाना चालू कर दिया है, The food that land produces. वो खाना जो वो भूमि वो देश पैदा करता है। Theophany feeds on word, थियोफनी वचन को खाती है, and you are feeding on that word. हालेलुया, और आप उस वचन को खा रहे हैं। That's why I said, इसलिए मैंने कहा you're eating the corn of the land. आप भूमि के अन्न को खा रहे हैं, You're eating from Melchizedek. आप मलकीसेदेक से खा रहे हैं, You're getting the quickening power. आपको जिला देने वाली सामर्थ मिल रही है, You're put in another dimension. आपको एक आयाम में डाला जा रहा है, You're put in a channel. आपको एक प्रणाली में Where you एक can नाली में डाला जा रहा है, say, जहाँ पर आप कह सकते I हैं heard of it. मैंने उसके बारे में सुना But तो now था, I see it. पर अब मैं उसे देखता हूँ। You're receiving a faith. आपको एक ऐसा विश्वास मिल रहा है, Your super sense is getting quickened, आपकी सर्वोत्तम चेतना जागृत हो रही है, which was never quickened जो before. कि पहले से जागृत नहीं थी। What is doing it? क्या कर रहा है इसको? Just eating. केवल खाना इस Just बात को लेके eating. आ रहा है, खाना, Just eating. क्या केवल खाना? Eating causes building. खाना जो है इस इमारत को खड़ा करता है, Eating brings faith. खाना विश्वास लेके आता Eating है, brings virtue, खाना सामर्थ को लेके आता है, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness. ज्ञान, संयम, धीरज, खुदायत्व और भाईचारे की You're प्रीति। not eating from the manna. आप मन्ना से नहीं खा रहे Oh, you know Jesus died for us. हो, हम जानते हैं यीशु हमारे लिए मरा, His blood saves us. उसका लहू हमें बचाता है। What is the blood? ये लहू क्या है? Who is Jesus? यीशु कौन है? Understanding? क्या समझ रहे हैं? The manna ceased. मन्ना तो समाप्त हो गया। Message change हो गया. Amen. गिलगाल पे टर्न आ गया. Amen. गिलगाल पे एक नया कॉर्नर. Amen. गिलगाल पे मैसेज बदल गया. Amen. हर खाना डिपेंड करेगा रेवलेशन 10 पे, Amen. जिससे सबसे ज्यादा घबराहट होती थी. अब खाना ही वहां से चालू है. क्या करें? क्या करें? बच्चे को भी चिप्स खिलाएंगे तो प्रकाशित 10 के खिलाएंगे. Amen. Amen. हाँ जी, हर चीज शुरू होती है प्रकाशित 10 से. हर चीज शुरू होती है 7वीं मोहर से. शुरुआती वहां से है. Amen. उससे पहले वाला जो होलीनेस मैसेज था, खुदा अच्छा है, आप भी अच्छे हो, आप भी अच्छे हो, बनते रहो अच्छे और बनते रहो. हम अच्छे थे नहीं, हम बन रहे हैं, हम बनते रहेंगे, हम बनेंगे. बनाना नेशन. हमें अपने आप को अच्छा बनाना है, बनाना है, बनाना है. बने रहो, बने रहो, बनाना, बनाना. इसे कहते हैं बनाना नेशन. हमारी तो खुदावन के पास है, बनाना नेशन नहीं है. उसका नेशन बन चुका. Amen. We are living in a different time. हम एक फर्क समय में रह रहे हैं. हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा बनने की. बनते रहो अच्छे. जिंदगी निकाल दो और एक दिन कब्र में भी उतर जाओगे. बनते ही रहोगे अच्छे. लेकिन कुछ लोग हैं पृथ्वी पे जो कह रहे हैं हम तो अच्छे बन चुके हैं. Amen. Hallelujah. बनेंगे नहीं, बन चुके. Amen. आज अच्छे हैं. Amen. They are the ones who are sealed. ये वो हैं जो मोहर बंदित हुए हैं And the manna ceased for them. और मन्ना उनके लिए रुक गया. Amen. Manna ceased for them. मन्ना उनके लिए रुक गया.
Now they don't have to eat from the old manna, अब उन्हें पुराने मन्ना से खाने की जरूरत नहीं, which fell every day. जो कि हर रोज गिरता था। First day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, seventh day. पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें जो दिन, 7 दिन की साइकिल में मन्ना गिरता था, वो 7 दिन की चक्री में ऐसे में। जो मन्ना गिरता था, now they don't have to eat from it. अब उन्हें उससे खाना नहीं है। They don't have to eat from church ages. अब उन्हें उन कलीसिया कालों से नहीं खाना। It is now after these things. आमेन। अब ये वो है जो कि इन बातों के बाद है। I heard another voice. मैंने एक और आवाज को सुना, Come up hither. इधर ऊपर आ जा। Opening of the word. वचन का खुलासा, Parting of Jordan. यरदन का फटना, Revelation 5. प्रकाशित वाक्य 5। What is the next thing? और अगली चीज क्या है? John is eating the book. यूहन्ना पुस्तक खा रहा है। And what is the next thing? अगली चीज क्या है? John is in a new city. यूहन्ना एक नए नगर में है। John is seeing another John. यूहन्ना एक और यूहन्ना को देख रहा है। When John is ready to eat, जब यूहन्ना तैयार है खाने के लिए, he's seeing another John. वो एक और यूहन्ना को देख रहा है। Amen. आमीन। Can you say हालेलुया। amen? क्या आप आमीन बोल सकते हैं? आमीन। Hallelujah. हालेलुया। That is what's taking place right now. यही चीज घट रही है अभी ठीक इसी वक्त At Gilgal. गिलगाल पर। Gilgal is a place गिलगाल वो स्थान है when the world is cut from your life. जहां पर दुनिया आपके जीवन से काट दी जाती है। Gilgal is a place of sealing. गिलगाल वो स्थान है मोहर बंदित होने का, And after the sealing, और मोहर बंदित होने के बाद there's a eating एक खाना है, and identifying with the Passover. और अपने फसे के साथ प्रायश्चित के साथ पहचान देना है। That is the beginning of the rapture journey. ये शुरुआत है रैप्चर की यात्रा की। Can you see that tonight? क्या आज रात्रि आप ये देख पा रहे हैं? Has that step begun in your life? क्या ये चरण आपके जीवन में शुरू हो गया है? That is the shout message. ये है ललकार का संदेश। Shout message brings you to Gilgal. ललकार का संदेश आपको गिलगाल पे लेके आता है। Try to catch it now. इसे पकड़ने की कोशिश करिए। अब Verse 13. 13वीं आयत। This again is happening. फिर से हो रहा है ये। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। आमीन। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? Yeah. तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। I am now come. मैं अभी आया हूँ। I've just come. मैं अभी आया हूँ। I've just come. मैं अभी आया हूँ। Gilgal. गिलगाल। हालेलुया। The headship had come. वो सिर आ गया था। The mind of Christ had वो come. मसीह का मस्तिष्क आ गया था, Which would be leading them. जो कि उनकी अगुवाई करेगा। Leading them in their conquest. उनकी लड़ाई में उनकी अगुवाई करेगा। आमीन। Read further. आगे पढ़िए। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? Yeah. यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। Same thing that Moses was told. वही चीज जो मूसा को बोली गई, Same thing Joshua is told. वही चीज यहोशू को भी बोली As I गई। was with Moses, आमीन। जैसा मूसा के साथ था, so shall I be with thee. वैसा ही मैं तेरे साथ भी होऊंगा। Now they are getting ready. अब वो तैयार हो रहे हैं। They are becoming an invincible army. वो एक अजीत सेना बन रहे हैं, Ready for the conquest. तैयार हैं लड़ाई के लिए। That part of the journey, that part of the life of Joshua वो हिस्सा जीवन का यहोशू के becomes the first step in Elijah. ये पहला चरण बन जाता है, पहला कदम बन जाता है एलिया के अंदर। The rapture begins at Gilgal, रैप्चर शुरू होता है गिलगाल पर, where the captain of the Lord of hosts come. जहां पर सेना का प्रधान प्रभु का आता है। That's why Elijah kept saying, इसलिए एलिया ने कहना, the Lord is कहता है, telling me to go there. प्रभु मुझसे कहता है वहां The Lord जाने is के telling me to go there. लिए। प्रभु मुझसे कहता है वहां जाने के लिए। Why? Who's telling him? क्यों? कौन है जो उसको बता रहा है? The headship. वो सिर, हेडशिप। The headship which had come at Gilgal. वो हेडशिप, वो सिर जो कि गिलगाल पर आया था। When that headship comes in your life, जब वो हेडशिप, वो सिर आपके जीवन में आता है, वो आपको बताएगा, आज मार्केट जा। वो आपसे कहेगा, आज मत जा। फिर आपसे कहेगा, आज जा और 2 दिन का खरीद। फिर अगले दिन कहेगा, आज मत खरीद। वो आपसे कहेगा, आज ये बोल, आज तेरे ऑफिस में ये होगा, तब तुझे ये जवाब देना है।
और तब आप अकल नहीं लगाओगे बोलने के लिए, आप जस्ट वो कहता जाएगा और आप बोलते जाओगे। हेडशिप आपको लीड कर रहा है। स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे यू रियलाइज आप ये समझते यू हैं आर नॉट यूजिंग योर ओन हेड। कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे। द कैप्टन ऑफ द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स इज लीडिंग यू। सेनाओं का यहोवा का जो प्रधान है यहोवा की सेनाओं का, वो आपकी अगुवाई कर रहा है। नाउ द लॉर्ड विल टेल यू। अब प्रभु आपको बताएगा। Elijah church, एलिया कलीसिया, now enough with Gilgal. अब बहुत हुआ है गिलगाल पर, Let us go to Jericho. अब आगे बढ़ते Sorry. हैं यरीहो की ओर। माफ कीजिए, बेथेल। माफ कीजिए, यहां बेतेल पर। गिलगाल से वो सीधा जेरिको गए, but Elijah will not go to Jericho. एलिया यरीहो नहीं जाएगा, Elijah will go to Bethel एलिया बेतेल जाएगा to finish some work there, कि कुछ काम को वहां पूरा करे। which we'll see Amen. next week. जो कि हम अगले हफ्ते देखेंगे। Then he'll come to Jericho, तब आएगा वो यरीहो पे, and then he'll come to Jordan. फिर तब आएगा वो यरदन पे। Until then, तब तक के लिए God bless you. खुदावन आपको आशीष दे। Next week. अगले हफ्ते। Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. God really bless you. खुदावन आपको वास्तविकता में बरकत दे। Hallelujah. हालेलुया। Keep on thinking, brother. इस विषय में सोचते रहिए भाई, Meditate on your Gilgal. अपने गिलगाल पे मनन कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपका नाम मुबारक हो आज के समय के लिए, और दिन के ठंडे समय आपने आके हमसे बातचीत करी, अपने वचन को खोला। दुआ है खुदावन की जब हम यहाँ से अब जाते हैं अपने घरों में, आप हमारे साथ हो, समय से पहुँच सके और हर एक को ठीक ठाक पाएँ। आपका नाम मुबारक हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, कि बादशाही आए, कि मर्जी आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आप हमें बख्श दें, जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। और मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, आप लोग जो भाई बहन हैं वो निकल सकते हैं और आमीन। हालेलुया। अभिलाष मसीह, एबनर